हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हमारे साथ हैं मिस्टर नित्या शाह हु लुक्स आफ्टर रिसर्च एट कामाख्या। It's a SEBI registered firm. He focused on value investing and fundamental research. He has completed CFA level 1 MCOM and is currently pursuing London in for his double masters. Along with his father, Mr. Dhiren Shah, he also manages proprietary fund, and he has experience of 6 years and released research reports in the name of Kamakhya for 56 companies and more dedicated to SME corner because it's a talk of the town. So we'll talk a lot about SME and we'll start with key because you are at such a young age. तो आपने कैसे स्टार्ट किया? व्हाट्स योर जर्नी एंड हाउ यू केम टू द मार्केट? कैसे स्टार्ट हुआ अभी एंड Hmm. व्हाट अभी वेदर कैसा है लंदन में और क्या चल रहा है वहां पर? आप क्या कर रहे हो? Yeah. So thank you, Nimish bhai, for inviting me to your show. Yes, the name of the firm is Kamaya Kya Wealth Management. It basically means आपने कमाया क्या. So we are a fundamental research focused firm. My father's been investing in the stock market since a very long time. He's seen Harshad Mehta, Yeah. seen multiple cycles. So I've had a commerce background. So since 16 I took commerce. I had decided that that's the route I want to take. मतलब growing up भी मैंने हमेशा investing देखा ही था. Like my father has a business background along with investing. So for me, every day you wake up in the morning, you're seeing your dad talk about all of this. न्यूज़ Hmm. चैनल्स हमेशा है, ब्रोकरेज था तो वहाँ पे देखते रहता था, तो इट वाज क्वाइट इनग्रेन्ड. And I used to enjoy it also personally because investing, it looks at all aspects of your life, your psychology, numbers, understanding of people, understanding of multiple sectors. Like it, It includes you don't everything. have, that's Yeah. all, you don't have two same days ever. कभी monotony नहीं आती. So I did my BCom, MCom, CFA. Now I'm doing my MSc in investments in London for a year, after which I will come back to India. So now Kamaya Kya just yesterday completed 2 years. Oh, great. And Congratulations. since we got our, thank you. Thank you so much. So it's been a nice journey. We've been targeting to do around 25 to 30 companies every year to recommend. So we research heavily. We have, including me, four more research analysts. Okay. So our process has been very fundamental oriented only. हम technicals बिल्कुल नहीं देखते, futures options नहीं करते हैं. So we just look at long term value based investing with growth triggers. So the philosophy is quite straightforward. We try to always stick to the facts. Stories बहुत रहते हैं. You have to filter the teams correctly. I think that only happens when you visit managements, visit companies. And you mentioned SMEs. So we thought that SMEs in India can be a very huge growing field in the coming few years, because see, the interest rates in banks are not cheap anymore. It's Yeah. 10%, 11% interest rates. Mm. I don't think most founders would want to take that route. It's much better for them to dilute some equity and then grow the business, because Yeah. people saw in a black swan event like COVID, all your profits and everything get wiped out for a good 2 3 years. So people don't want to see that kind of risk again. So I feel in the next few years, the amount of SME IPOs that will come in, like regardless of whatever regulatory stuff is going on right now, because see, it's important. I think the regulator will end up doing a good job by the end of it. You Yeah. need to filter out all the miscreants, because जब टाइम अच्छा रहता है तभी फ्रॉड्स भी बढ़ ही जाते हैं, इफ यू सब हैव बढ़ नोटिस्ड. जाता है तो तो और आपको तो फॉरेक्स कुछ का कुछ पूरा चीजों नॉलेज है. को कुछ कुछ चीजों को सफाई करनी भी जरूरी हो जाती है. करेक्ट करेक्ट. तो आई थिंक जब स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, देन पीपल्स रिलायंस ऑन द मार्केट विल ऑल्सो इंक्रीज, मोर एसएमई पार्टिसिपेशन विल कम. अभी भी बहुत फंड मैनेजर्स रहते हैं जो कहते हैं वी डोंट टेक एनी एक्सपोजर टू एसएमईज, विच इज अ फेयर पॉइंट कि जिसको जो सूट होता है वो कर उसको वो सकते करना हैं, चाहिए. जिनका जितना कैपेबिलिटी है वो उतना करें. मतलब इट डिपेंड्स ऑन दैट मार्केट इज कि आर टू यू बिग. एबल टू. करेक्ट, देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. मतलब आप लार्ज कैप में भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हो अगर कोई एक स्टॉक में बहुत बड़ा एलोकेशन ले लिया. सो बाय द एंड ऑफ इट, यू हैव टू जस्ट सी व्हाटएवर मेक्स मनी फॉर यू, वेल एंड गुड. Right? So SME corner, we decided to start at Kamaya Kya. There was lots of demand for SMEs, and we used to understand the space pretty well. We या. personally invest a lot of our funds in it also. I'll give full disclosure. At the most, at any given point in time, more than 10% of our prop fund is not invested in SMEs, because liquidity is a very इज द इशू. important इज द वेरी. factor. So we don't allocate more than 10% of our wealth towards SMEs. So it's a very high risk kind of category of investing.
So that's High pretty risk, much high been my growth. journey. High risk, high growth, high risk, high reward. So that's pretty much been my journey. So when I was 18, my father made me open my Demat account, and then धीरे धीरे सीखते गया मैं over the years. Now it's my sixth year of investing. So I've seen a good market so far. 2018, I was too immature at the time. तभी IL&FS crisis हुआ था, से पता but I है। didn't have knowledge of what was going on that time. So that time I saw that everything was crashing, small caps were falling heavily. But then the markets recovered a little bit after that. Then COVID happened, and then after that, तेजी देखा है ज़्यादातर. Like barely in the middle, of course, there were blips, but all in all, it's been a pretty strong bull market. So I would say that luckily, thanks to dad, throughout mentor कर रहे थे, मेरे को इतने mistakes करने को मिले नहीं. Obviously, I've done a few, but he always kept me away from F&O trading. मतलब उनका पहले से वो प्रिंसिपल था वो value ज्यादा investing. वो ज्यादा हाँ. तकलीफ देते हैं बाद में। Correct. But it's got its good side, bad side also कि mistakes इतने करने को मिले नहीं. तो I've just decided to stick to what I understand. That's been my main focus. That जितना समझ में आता है उतना ही करता हूँ. सही है। It's a great journey, Yes. I think. At such a younger age, you achieved a lot. And there is a Thank you. there is a lot of things which is there also because in India also if you see SME market is evolving a lot. मतलब ये ऐसा नहीं है Hmm. क्योंकि इंडिया में MSME है ही इतने सारे। अभी तो मतलब इट्स लाइक अभी चालू हुआ है। तो वो फिल्ट्रेशन जरूरी है बट आई थिंक द मार्केट विल इवॉल्व ग्रो मेच्योर एंड सेबी विल कम आउट। आई थिंक आज ही एक अनाउंसमेंट भी आया है कि सेबी इज कम प्लानिंग सम पेपर तो वहां पर आई थिंक चीजें चेंज होगी एंड इट विल बी गुड फॉर मार्केट आई थिंक एंड फॉर गुड फॉर द इन्वेस्टर ऑल्सो बिकॉज ऑलरेडी एक फिल्ट्रेशन तो रहता ही है कि 2 लाख से ऊपर का ही एक लोड होता है तो ऑलरेडी लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं बट आफ्टर दैट ऑल्सो वी नीड अ चेक एंड बैलेंसेस ताकि जिस तरीके के फ्रॉड्स अभी जैसे लाइक ट्रैफिक सोल में हुआ था वैसी चीजें नहीं हो। Hmm. वो बहुत जरूरी है। नहीं नाउ नाउ लेट्स कम टू द माइक्रो कैप एंड एसएमई इन्वेस्टिंग लास्ट 4 इयर्स में अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ ह्यूज ह्यूज रन इन एसएमई एंड माइक्रो कैप आईपीओ इंडेक्स इज लाइक ऑल टाइम हाई। Correct. What's your view? Like, you do a lot of research on SMEs, IPO, मतलब SMEs and microcaps. So, what's the trend? Like, what you think कि यार अगले 2-3 सालों में the growth will shoot up or it will like stagnant for some time or it will be like, uh, zigzag types. So, what's your view Yeah. कि किस तरह से market किस तरह से evolve होगा SME का? I mean, see, I personally feel that SMEs are only going to grow going from here. The way we evaluate SMEs is in the sense कि opportunity size कितना बड़ा है, वो player क्या कर रहा है और उसके competitors कितने हैं. Like there has to be some kind of niche that's going on, and I'm very value focused. So I'll take names also, but whatever names I take, like they are not recommendatory in any way. मतलब buy sell मैं कुछ हाँ हाँ, बोल नहीं रहा हूँ. we'll put It's the just disclaimer for also. example. Yeah, yeah. So it's just for, my understanding that I'm saying, like Yeah. companies like we missed out on many, growing trends because मेरे को valuation ही समझ में नहीं आया कैसे मिल रहा था. Like I Hmm. was seeing companies like Mason Valves, Oriana Power, then Oh, heavy. there's more Heavy like for overvaluation. trading. I've never seen solar EPC companies trade at 8 times sales, 10 times sales. Matlab, it made no sense to me. Like I can't invest in that. So I was happy that fine, whoever invested understood it, made their money, very good for them. So we were unable to get into such names. I've been more value focused. So I used to always look at companies where the margins are stable. ऐसे अभी आप कंपनीज देखो एसएमई में कितने तो ऑपरेटिंग लॉस में ही है. All Yeah. the disclosures will be haphazard. You will not understand only what is going on. Cash flow, negative So there cash were flow, negative operating exactly. profit. Too much So going on. I personally I don't like taking companies which have a very leveraged balance sheet. तो usually मैं net debt free के लिए ही ज़्यादातर prefer करता था और that the debt to equity should be less than 1.2 times. Preferably that used to be my bare minimum criterias. Yeah. And growth of course is very important. So we used to actually always use reverse screeners कि are there any SMEs where the sales have stagnated for say 2-3 years and अभी उनका capacity live जा रहा है तो अभी growth आ सकती है. So we used to Hmm. keep track of that in the DRHP ki, the sales growth has been stagnant in the last few years due to capacity constraints. Now that constraint will go away, what can happen?
is Hmm. the demand for that industry there or not? That will So be interesting. value is That will be very interesting so thing. कि एक बार yeah, रुक because गया तो many कहीं ना कहीं companies वहां have पे found ग्रोथ आ that. सकती है. एंड अगर एसेट बेस अच्छा है Yeah. आपका, देन देयर विल बी अ प्लान और समथिंग लाइक दैट फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड आल्सो. और यहाँ पे अच्छा क्या है कि दीज कंपनीज आर नॉट वेरी वेल रिसर्च, लोगों को मालूम नहीं रहता ये कंपनीज के बारे में, सो यू हैव अ स्लाइट इन्फॉर्मेशन एज दैट यू आर एबल टू स्पॉट थिंग्स बिफोर. लाइक अभी मार्केट्स आर ऑल बाय द एंड ऑफ इट एसएमईज आप कितना भी बोल दो, द एक्सेसेस विल गेट करेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एंड मार्केट्स विल ओनली मूव अकॉर्डिंग टू अर्निंग्स. अभी या आप सुपरफिशियल ग्रोथ दिखाओगे ऑफ 100% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, you might trade at above 50 times earnings on a forward basis. But 100%. अगर आपका ग्रोथ स्टैग्नेट हो जाता है, आपके वैल्यूएशंस भी स्टैग्नेट होंगे फॉर श्योर. देयर विल बी मीन रिवर्जन इवेंचुअली, हंड्रेड and the परसेंट. good companies will continue to do well and the bad companies will go out of everyone's radar. So by the end of it, you will see that 10-20% of the companies, actually the real metric to track, I don't have the numbers, I want to see how many ended up migrating from the SME board to the main board. वो हाँ. असली मेट्रिक है कि कितने कंपनीज एक्चुअली सक्सीड होते हैं. हम्म. क्योंकि आपका लिक्विडिटी तभी इंप्रूव होगा जब आप मेन बोर्ड पे शिफ्ट मेन होंगे, बोर्ड पे जाओ. एंड उसके लिए काफी क्राइटेरियाज लगते हैं. या So that should actually show you what is the, द not रियल. exactly your success, but it will give you an idea कि कितने कंपनीज एक्चुअली कर पाते हैं. व्हाट आर द It's a रियल good metric to कंपनीज वो विच आर डिलीवरिंग व्हाट दे सेड. और track. लास्ट 3 और 3 साल, आई थिंक 3 साल का उनको रनवे चाहिए टू गो इनटू Correct. मेन बोर्ड. तो अगर वो 3 साल में भी अगर And there are few, कंप्लीट नहीं कर there पा are रहे हैं. like a few criteria where you can do it prior to 3 years also, like some additional criteria तो 2.5 years में भी हो सकता है कभी कभी. ओके. So I would say that abhi SME is in a very good spot, like due to very heated valuations. मैंने कमाया क्या पे last 6 months कोई SME stock बिक्री में recommend नहीं नहीं. किया है. तो recommend ही नहीं किया क्योंकि मेरे को मिल नहीं रहे हैं कोई value के, मतलब अच्छे लग रहे हैं, काफी मिल भी रहे हैं. So we meet promoters, we visit their plants quite a lot. अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लंदन में हूँ, but my team often visits them. So ओके. we like a few companies, but we are not comfortable with the valuations, or then the triggers for growth are, say 6 months away or 9 months away. So say if the capacity is going live in Q4, I will not buy it now because there's no point in buying it. I'd rather buy 10% more expensive once the capacity has come live. Because 100%. मेरे को waiting game पे नहीं रुकना है. Like हाँ. 10% ज्यादा हो, but at least then you're not waiting, because many times companies say that our capex is going live in Q4, then suddenly बोलेंगे कि मशीनरी नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, डिले हो गया, then Q4 100. का फिर हो जाएगा. माइक्रो कैप और एसएमई में वो ज्यादा इशू आता है क्योंकि उनको क्या है कि वो दे आर लाइक मोर डिपेंडेंट ऑन वन वेंडर और समथिंग लाइक दैट. यार स्टार्टअप को इतनी तकलीफ नहीं है कि इसने नहीं दिया तो वो किसी और को बड़ा प्रोजेक्ट दे देगा, वहां से उनको डिलीवरी मिल Absolutely. जाएगी. बट वो जो छोटे वेंडर्स होते हैं उन दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन, लाइक एक बड़े आदमी पे डिपेंडेंट है, और अगर वो नहीं डिलीवर कर पा रहा है तो नहीं डिलीवर कर पा रहा है. सो वो उनका पूरा, फिर आपका एक क्वार्टर पूरा खराब हो जाता है कि आपने क्या सोचा था, आपका प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन जो भी है, मतलब वट एवर यू डू एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस. So I think you told a very interesting thing that you visit a lot of management. So Yeah. I think I talk a lot about Scuttlebutt, and I also feel कि आपका network, your network is your net worth. So Mm. what is the importance of Scuttlebutt in microcap space, because it's under tracked. ना तो कोई इसमें ज्यादा एनालिस्ट हैं, ना कोई इसमें ज्यादा बात कर रहा है, ना कोई मीडिया उसमें इस पे कनेक्शन, मतलब कहीं मीडिया उसमें बहुत सारी कंपनीज है ही नहीं. इवन इफ द कंपनी इज ग्रोइंग लाइक 100% तो भी उसकी कोई बात नहीं कर रहा है. और कुछ कुछ कंपनीज खुद Mm. से भी दे डोंट नॉट वांट टू डिस्क्लोज मच कि वो उनका कोई पीपीटी नहीं है, कोई कॉन कॉल नहीं है, कोई आईआर नहीं है. तो नोबडी इज गोइंग टू बी ऑन देम कि यार भाई क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं है. बट समटाइम्स क्या होता है कि जैसे लाइक फॉर मी, लाइक you stay in Pune, so what I do is I just call you or I just send you that this Yeah. is what I find, and then can you help me with that if you know anybody. So Mm. how, what is your process? Because you are like a more structured in a हाँ. Kamayakhya, you are more structured. So what's your thought process, and how you do scuttlebutt? So how we go about it is that, as you said, that we have like our network built like through various industry sources. Like for example, I have a few friends whose families are into certain kind of businesses where they give me some insight, or just from my network basically कोई वही इंडस्ट्री में है तो मैं उनसे हमेशा बात करता हूँ पहले. Mhm. That becomes the first source. Then second is that in these small companies, I actually become a little bit scared if they are doing too much disclosure, too many meetings, too many con calls, too many PPTs, because
आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो या फिर आपको आईआर ही करना है, तो 2 करोड़ का फोकस मार्केट कैप कहाँ और पे रोज रोज पीपीटी चेंज हो रही है हर हर क्वार्टर। एक अच्छा वाला था, मेरे को याद है लास्ट ईयर वी हैड टेकन अ पोजीशन इन दिस कंपनी, सो इट वाज बिलो 100 crore मार्केट कैप बट द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वाज 120 स्लाइड्स। सो आई वाज लाइक ये क्या चालू है, मतलब इतना ज्यादा कुछ है भी नहीं लिखने के लिए। इट्स लाइक हाउ कॉमर्स स्टूडेंट्स फाइंड 3 ways ऑफ राइटिंग द सेम थिंग, वही लग रहा था मुझे। सो आई स्टार्ट Then I waited for 1 quarter, 2 quarters. I'm still not seeing any improvement in the performance, but the stock price is going up. I was like, this is a signal, let's get out. And I got out of the position. सही And है। then बाद में 6 महीने बाद QIP भी हुआ, everything happened. So we see it's a frenzy right now. A lot of QIPs are happening, promoters are selling. So we have to be very, very careful of where we are getting in. So back to Scuttlebutt, I look at online Scuttlebutt also quite in depth. ओके। कि Google ratings कैसे हैं, Google reviews कैसे हैं of that company by any chance. Then employees का भी देखता हूँ LinkedIn पे, all their social media we have a look. Then we always do a legal check also कि इंडिया कानून करके एक वेबसाइट रहता है, तो are there any cases of the company or the promoter, वो देखते हैं हमेशा. You will be surprised इंटरेस्टिंग। what kind of cases are there. Sometimes you will actually be surprised. कोई कोई कंपनीज पे तो मर्डर केस का रहता है कोई ओहो। इन्वेस्टिगेशन, कैन बी क्वाइट बैड एक्चुअली. सो एंड देन समटाइम्स फॉर फ्रॉड किसी ने पहले पकड़ा है इन अ पर्सनल नेम ऑफ द प्रमोटर, मे बी नॉट इन द कंपनीज नेम. सो इट जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि अगर एक बार कर लिया दोबारा भी हो सकता है, हम्म। इट कैन बी दैट वे बिकॉज यू हैव टू फिल्टर अ लॉट. सो ग्लास डोर एक रहता है वेबसाइट, वहां पे आप देख सकते हो, बट यूजुअली इट बिकम्स अ बायस ऑल्सो बिकॉज जो एम्प्लॉय एक्चुअली हैप्पी है वो जाके हाँ, ग्लास डोर पे कुछ वो लिख लिखते नहीं। सकता है. आपके फायर्ड एम्प्लॉयज ही जाके कुछ लिखने वाले हैं. सो यू शुड टेक इट विद अ पिंच हम्म। ऑफ सॉल्ट कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. तो मोटा मोटी देन आइडिया जस्ट लग सी. जाता है। मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि सॉरी. क्या चल रहा है। मोटा मोटी आइडिया लग हाँ, जाता है, मोटा एक दो मोटी तीन आइडिया चार लग वेबसाइट से अगर आप देखो, जैसे गूगल रिव्यूज इज नॉट लाइक ओनली वन साइडेड रिव्यू, इट कैन बी पॉजिटिव। जाता है. एंड देन यू जस्ट सी कि सर्चेस में इनका कितना इंक्रीज आ रहा है, इज देयर मोर ट्रैक्शन फॉर देयर प्रोडक्ट, इफ दे आर ऑन एनी पोर्टल्स लाइक इंडिया मार्ट और Amazon और एनीथिंग, वहां पे क्या रिव्यूज हो रहे हैं. Then just try and see if like they have a store or something, visit the store. या, Like I used to do दैट्स it द for बेस्ट companies like थिंग। Carousel, वो kitchen sinks, यस, quad यस। sinks करता है. Visited a few of their showrooms, so I was quite happy with the quality of the product. एक तो मेरे घर के पास ही था, तो it was very easy for me to go. So it was quite good in that way. Like you get an understanding product कैसा है. Like until you don't touch and feel, you'll not understand कि इसका premium क्यों है. How are they able to manage 20% margins? Is their pricing power? And ऐसा भी position था, the Carousel store was next to its competitors only. Frankie ओके। and Blanco was right next to it. Who are international and their prices are much higher because ओके। quality is higher. हम्म। So that way you get a sense of the market. जो भी ऑफिस के बाहर जाता है ना, उसको ज्यादा सीखने को मिलेगा. अगर आप कैबिन में बैठ के रह जाओगे तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू गो फॉरवर्ड आफ्टर अ पॉइंट. यू हैव टू मीट पीपल. So expos is another great way of understanding. So we attend quite a few expos, especially in chemicals. उसमें काफी expos होते हैं, तो there you get an understanding of demand because उनके end user industries बहुत होते हैं. तो you can quickly speak to sales manager over there if they have the time. Like अगर stall crowded नहीं है, you can have like a quick conversation with them that how are you seeing your capacity utilization in the plants. Then is there any pickup? Which sector is giving you more orders than the others? So एक basic idea आ जाता है like of how is the demand scenario. So like last year I remember it was quite a bad scenario for chemicals, ओके। but finally that's when you actually end up getting value. कि 3 साल के लिए slump हुआ chemicals. If you अभी see in वापस। 2020 और के QIP हो रहे थे. So QIP is usually a sign of topping out of share prices most of the या। times because आपका share price भगाएंगे QIP तक to show that you're giving it at a discount, and then after that the price will stagnate for a while. मैं तो So जिस that कंपनी becomes में a क्यूआई sign. किया जाता है, मैं एक बार रुक जाता हूँ भाई, कि भाई यहाँ पर Correct. अब अब म्यूचुअल फंड्स आ चुके हैं, अब अपन को रुकना है भाई। अब रिटेलर्स या मतलब अब ज्यादा बचा नहीं है प्लेट में, मतलब इसलिए क्यों म्यूचुअल फंड्स आ गए आप हैं। आप सीए हो, आप फाइनेंस पूरा समझते हो. यू नॉट डाइल्यूट equity at a cheaper valuation. You will try to dilute at the best यस, possible हंड्रेड valuation. परसेंट So basically you are diluting at the topping out of the share price हंड्रेड most of the time. That's why if you see for 6 to 9 months it will nicely consolidate after QIP, after which the growth triggers again come, then या, you look at it freshly. So एग्री। Scuttlebutt, even visiting the plants, like whichever promoters are, able to find the time or give you the opportunity to visit the plant, definitely take it. यस। Because कितने बार stories बने जाते हैं ना through the PPT, like you'll think that oh this company
doing something amazing, the product is top notch and all of that, कि ये पूरा बहुत चेंज हो जाएगा, और आप जब भी प्लांट जाओगे देन यूल अंडरस्टैंड कि वो ये तो कमोडिटाइज्ड है, बैरियर्स टू एंट्री कुछ भी हम्म नहीं है, कोई भी बना सकता है। तो आपके मतलब होराइजंस इंप्रूव अ लॉट, लाइक यूल, हम्म एंड प्लस वंस यू डन लाइक 15-20 ऑफ दीज विजिट्स ना, फिर थोड़े चीज ऑलरेडी आपके माइंड में रह जाते हैं कि दीज आर द बेयर मिनिमम थिंग्स, यू नो। और वो सो आप एक एक इंडस्ट्री का, जैसे लाइक आई विजिटेड वन अनलिस्टेड कंपनी, तो उसमें दे आर लाइक रबर केमिकल्स, तो देयर पीपीटी इज सेइंग कि यार हम तो इंडिया में बिल्कुल यूनिक हैं, ऐसा कोई नहीं करता है, बट आप वहां जाके देखोगे भाई असली में तू रबर ही लगा रहा है भाई। एंड अगर रबर का प्राइस में कुछ भी होगा तो इट्स लाइक कमोडिटाइज प्रोडक्ट, सो यू आर नॉट क्रिएटिंग अ कंप्लीट टर्न की सॉल्यूशन नहीं दे रहे, तू केवल लोहे पे रबर लगा के दे रहा है। तो तेरे पास प्राइसिंग पावर तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पूरा जो एक पूरा जो एक बॉयलर है, पूरा एक बॉयलर अगर 100 रुपए का है, तो तेरा तो माल उसमें 5 रुपए का लगा हुआ है। सो यू डू नॉट हैव एनीथिंग ऑन दिस, एंड यू कैन नॉट से कि भाई यार मैं तो, मेरे अलावा कोई करता नहीं है। इट इज यूनिक बट स्टिल इट्स अ वेरी कमोडिटाइज्ड थिंग। तो आप वो जाके ही आपको पता बेसिकली चलेगा डिफेंसिबिलिटी नहीं। कैसे होगी, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो करेक्ट। आई थिंक यू सेड, यू टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट लाइक स्कटलबट, सो आई थिंक लेट्स रिमेम्बर अगेन। वन इज लाइक गूगल रिव्यूज, वन इज ऑन, अगर अमेजोन B2B साइट्स है तो B2B साइट्स, एंड देन योर ग्लास डोर, योर लिंक्डइन सोशल मीडिया ऑफ द एम्प्लॉइज, देन योर इंडिया कानून वेबसाइट, प्लांट विजिट्स, प्रमोटर विजिट्स, इंडस्ट्री कनेक्ट्स, एक्सपोज। So there is like और डीआरएचपी तो पूरा छान लेना चाहिए, डीआरएचपी इज वन ऑफ द DRSP तो बेस्ट डॉक्यूमेंट, सब रहता है yes, उसमें। it's 100% मतलब so टेक and द पेन टू रीड, विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फो अबाउट दैट कंपनी, बिकॉज वो अभी सेबी ने भी इतने स्ट्रिंजेंट फिल्टर्स लाए हैं डीआरएचपी के फाइलिंग में, जब तक वो नहीं रहता पास ही नहीं होगा आपका आईपीओ। पास ही नहीं होता। सो दे आर फुल्ली स्क्रीनिंग यू ओवर देयर, लाइक इट्स must to go through the DRHP एकदम properly. Like after a point, you'll be able to quickly do a control F and just find whatever particular points you're looking for. हाँ हाँ And there itself you reject companies. तो आपके पास कितना ही टाइम होगा, how many companies will you read? So अगर यस कोई एक भी फिल्टर हो जाता है, like your basic financial filters should be in place, कि अगर हम्म SME में है over 5 years the sales growth is below 5% CAGR, वहीं से देखो ही मत वो कंपनी देखो को। ही मत, कोई मतलब नहीं। मतलब why waste time, right? Like there's so many companies, rather go for someone who's at least able to do something. या 100%। Unless there's of course some special situation, then it's different. तो हम जो लाइक गिविंग यू माई एग्जाम्पल, तो हम तो क्या करते हैं, हम वो DRHP भी पढ़ते हैं, जैसे लाइक इफ यू आर रीडिंग अबाउट लाइक स्टील, स्टील या लाइक स्प्रिंग कंपनियां, पिस्टन्स, अभी बहुत सारी पिस्टन्स की कंपनी और इनके बारे में बात चल रही थी, तो उसकी भी कोई सिमिलर कंपनी भी IPO आता है ना, तो यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा टू रीड अबाउट द इंडस्ट्री, उसमें क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्योंकि DRHP में वो इतनी चीजें मांग लेते हैं कि मतलब आपको पूरा इंडस्ट्री से क्या लेके, कंपनी से लेके उसकी पूरी, Like, जब से प्रमोटर पैदा हुआ है तब से लेके एंड तक सब कुछ पता चल पूरी जाता जन्म कुंडली मिल जाएगी कंपनी की, है। मतलब कुछ मिसिंग नहीं रहेगा उसमें। DRHP इज द So बेस्ट DRHP is डॉक्यूमेंट। actually a great document. It's a very good document that they get out. So you understand everything from there. हम्म And competitors का भी आपको हमेशा चेक करना चाहिए, because 100%। and very important, बहुत लोग ये लोग नहीं करते। मतलब I had gone for this one course in Flame called Flame Investment Lab. वहाँ पे एक important point थी जो हम बहुत बार लेजी हो जाते हैं चेक करने के लिए, नहीं, बट many companies have different accounting policies. तो आपका बहुत बार apples to apples नहीं होता है। Like even if you're हम्म doing your peer analysis, sure that the revenue recognition is of the same type, या make sure the depreciation is the same type, or like at least normalize the earnings for that. बहुत लोग ये नहीं करते कि at least have a look at how is the accounting being done, because otherwise the figures you're looking at are wrong technically. हाँ अगर आप कंपेयर कर रहे हो, पूरा गलत जा रहा है आप। मैं जैसे मेरी बात करूँ, तो अब जैसे मुझे अगर मतलब मैं जनरली आलस कर जाता हूँ, तो रियल एस्टेट कंपनीज इसलिए मैं इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप एम्पल टू एम्पल आप कर ही नहीं सकते। एक तो कर नहीं सबका सकते। लोकेशन जियोग्राफी अलग, दूसरा फिर वो उनकी अकाउंटिंग अलग, अकाउंटिंग के बाद फिर डेप्रीशिएशन कोई किधर लगा रहा है, कोई प्री सेल्स कैसे अकाउंट फॉर कर रहा है, सबके अलग 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 और फिर प्रोजेक्ट वाइज इतना डाइवर्सिफिकेशन, तो मैं तो इग्नोर ही कर देता हूँ, रियल एस्टेट कंपनी करनी ही नहीं है इसके Like बजाय, नहीं तो। till date, I've never invested in a real estate operating company. I've always looked at proxies only. Because हाँ मेरे को उसी समझ करो। नहीं आता है, how to evaluate it is very very tricky. एंड उसमें What अभी valuation इंडेक्स to give it आके is very और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसको। जो अभी रिसेंट इंडेक्स लीज का आया ना, उसके बाद लीज आने के बाद तो सारी कंपनीज ऊपर नीचे हो गई, प्लस जो रियल एस्टेट की कंपनीज थी जिनमें आपका POCM होता है,
जितना आपका कंप्लीशन होता है उसके हिसाब से आप अकाउंटिंग करते हो, तो आपको कभी 100% आपको पता ही नहीं चलता है कि असली में रेवेन्यू कितना बुक हो रहा है। आपका प्री सेल्स आपको कुछ अलग नंबर दिखा रहा होता है, आपके असली में रेवेन्यू EBITDA कुछ अलग ही आ रहे होते हैं। तो वो फिर मेरे को At the लगता end of है it, cash flow is the only metric you have to look at in real estate. जो हाँ, operating उसमें cash कैश flow तो प्री है, सेल्स भी वो देख will के be आप very कर सकते lumpy. हो। यस यस यस, करेक्ट, बहुत बाकी तो लंपी मतलब होंगे। ही नहीं। 2 साल के लिए कुछ नहीं होगा, 1 साल में 3 साल का आ जाएगा फॉर 3 साल एग्जाम्पल, के नंबर आ मोस्ट जाते ऑफ हैं। द टाइम। वैसे ही, सो यू हैव टू, द रियल ट्रैकेबल इज योर प्री सेल्स एंड योर कैश फ्लोज, यही दो हाँ चीज हाँ। मेनली आपको देखने पड़ते और हैं। उसके बाद भी क्या बट होता इट्स है मच ना इजियर, हम्म, it's much easier to look at a proxy, like much easier to हाँ, बिल्डिंग understand, मटेरियल में करो इसके बजाय क्यों दिमाग लगाना। लाइक यू सेड कि exactly. कैरोसिल है, तो अब जैसे मान लो कि अब यूएस यूके का मार्केट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, तो वी कैन अगेन लुक बैक एंड कैरोसिल इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, लाइक इट्स जस्ट एन एग्जांपल, बट वो I mean, कर I did sell out लगता at है। around about 1100, but I am looking at it again. That if I get it at a, because see, right now I feel that he's given so many projections of, 1,000 crores of top line by FY 25, then he stretched that to FY 26. तो हम्म वो numbers already सबके mind में आ गए हैं. हम्म Like there's no surprise. Like usually आपका पैसा कब बनता है, जब थोड़ा earnings में surprise हो. जो या already सब मालूम है आपको, then there's no mystery, वो right? तो By the end of it. अगर, और मेरे को तो वो कंपनीज में भी थोड़ा सा लगता है कि जो ज्यादा ही गाइडेंस दे देती है। अभी जैसे अभी बुल मार्केट में इफ यू सी सीएनबीसी के अगर आप इंटरव्यू देख रहे हो तो हर कंपनी 27-30 तक की गाइडेंस देके जा रही है। मैंने कहा कि भाई जनरली क्या होता है कि यार लोग प्रोजेक्शन बनाते हैं बट इतना बोलते नहीं है कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे। अभी क्या है कि FY 27 FY 28 का प्रोजेक्शन देना इज लाइक नॉर्मल। जनरली क्या होता है कि आपको कंपनी का इतना पता नहीं When होता। I evaluate Like when I look at valuations, मैं 2 year forward के आगे देखता ही नहीं हूँ, because no one knows what's going to happen after 2 years. मुझे नहीं पता क्या And the होगा stock price, next साल। हम जिंदा होंगे कि नहीं नहीं मालूम, 2 साल में वो भी हो सकता है. So तो क्रेजी हो रहा है अभी तो। like I look at, and if you notice in general, stock markets have priced in at the most 2 year forward, like not more than 2 year forward यस यस earnings. उससे डेफिनेटली। ज्यादा कर नहीं पाते लोग. So it gives you a clear indication कि उसके आगे इतना आप क्यों evaluate कर रहे हो. Of हाँ course, you have to look at terminal value. Will this longevity of growth even last? What are the chances of some substitutes coming in? Will this business go out of fashion? वो आपको देखना पड़ता है of course terminal value के लिए, but otherwise I think up to 2 years forward 2 forecasting इयर्स is फॉरवर्ड से ज्यादा more जाने की than जरूरत ही enough. नहीं है। Right. और और मैं वो फैंसी एक्सेल मॉडल्स वगैरह मैं नहीं करता. मैं भी मतलब नहीं। दैट एकदम इन डेप्थ वो सब करते हैं ना, मतलब आई फाइंड इट दैट यू कैन ट्वीक द अजम्पशन सो इजीली. तो आपको जो वैल्यू चाहिए आप लेके आ वो आप सकते हो लेके आ सकते हो, तो बाय उसमें द एंड. मुझे भी, सो आई ऑल्सो बिलीव इन द सेम थिंग। मतलब मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स भी देखी है, तो सो आई फाइंड योर रिपोर्ट्स आर लाइक क्वाइट लाइक हाउ आई थिंक। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मेरा करेक्ट. थॉट प्रोसेस है कि अगर बिजनेस अच्छा है और वो जिस हम्म. बिजनेस में काम कर रहे हैं उसमें वो अच्छे हैं, प्लस वो अपॉर्चुनिटी साइज ही बहुत बड़ी है, तो वो अगर कुछ भी करेक्ट. करेंगे तो वो ग्रो करेगी वो कंपनी। तो उसमें अब अगर तेरा अजम्पशन है, मान ले इस बार मतलब लास्ट जो भी एजम्पशन लगा रहे हैं वो क्या कर रहा है, पिछले 2-3 सालों का देख रहा है कि भाई 10% से ग्रो कर रहा है, 50% से ग्रो कर रहा है, फिर 25% से ग्रो कर रहा है, उसी को आगे एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो करने से कुछ होगा नहीं। मतलब तुम एक्सेल में कुछ भी करो ना, फिर तुम डिप्रेशन की, कभी वो डिप्रेशन की रेट चेंज कर रहे हैं, कभी किसी में मार्जिन इंप्रूव कर देते हैं भाई 1% 2%। तुम ये देखो कि अगर असली में बिजनेस अच्छा है और मैनेजमेंट जो वॉक द टॉक करता है, तो आप उसको 1 या 2 साल में और अपॉर्चुनिटी साइज बढ़ी है तो आप आराम से उसको इवेल्युएट कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता है वो एक्सेल मॉडल से कुछ होता है। वो टारगेट प्राइस तो यार पी मल्टीपल चेंज करती है तो टारगेट प्राइस चेंज हो जाती है, अब तुम अर्निंग कुछ आ भी नहीं जाएगा कर। अब तूने उसको बाद में रीरेट कर एब्सोल्युटली. दिया या उसको डाउनग्रेड कर दिया तो तेरे जो चाहिए वो रेट आ जाएगी। तो आई डोंट थिंक, मेरे बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट दोस्त भी हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ भाई तुम, एक्सेल मॉडल इज लाइक जस्ट 5% ऑफ योर थिंग, 95% इज योर लाइक असली में बिजनेस क्या बिजनेस है। एनालिसिस. हाँ, अगर बिजनेस ही समझ में नहीं आया तो भाई फिर ये मॉडल का क्या करेंगे। मॉडल तो बहुत सारे लोग बना सकते हैं ना, मॉडल तो एक्सेल बना देगा, मतलब कोई ना कोई किसी को दे भी दिया तो वो बना देगा। भाई बिजनेस समझना इज नॉट इजी और इट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। कि किसी को केमिकल भी समझ में आ गया, किसी को ये भी समझ में आ गया, किसी को रियल एस्टेट भी समझ में आया, सबके बस की बात नहीं है। तो एक मैं अभी लिंक्डइन जब भी स्क्रॉल करता हूँ ना थ्रू माय लिंक्डइन हम्म, फीड, मैं बहुत बार ऐसे देखता हूँ जो एस्पायरिंग रिसर्च एनालिस्ट रहते हैं, दे कॉन्स्टेंटली कीप अपलोडिंग दीज फाइनेंशियल मॉडल्स. आई मेड हाँ हाँ। फाइनेंशियल मॉडल ऑफ सो. तो एक बार मैंने डीमार्ट का देखा, देन आई वाज जस्ट सीइंग कि उसने रिस्क्स में क्या देखे हैं. उधर हम्म उसने रिस्क में क्विक कॉमर्स का कुछ लिखा ही नहीं है कि हाउ विल क्विक कॉमर्स अफेक्ट डीमार्ट्स फ्यूचर. इट्स नॉट हम्म। देयर. और भाई So then I told my marketing team that make a case study on how DMart will get affected by quick commerce. 100% कि ये भाई पार्ट पूरा गेम चेंज हो बिजनेस गया है। एनालिसिस कोई देखता ही नहीं है.
पूरा क्यों, तो ये जो पीपल, ये जो 10 मिनट वाली जो डिलीवरी आई है ना, तो सही बोल रहा है भाई, पूरा गेम चेंज हो गया है। मैं अभी यहाँ पर iPhone 16 10 मिनट में डिलीवर हुआ है। iPhone 16 मेन गेम वहां पे चेंज हुआ भाई। लोग और वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि भाई ये कुछ कमाएंगे। लाइक मेरे को भी, मैं भी अगर अगर तू मुझसे 1 साल पहले पूछता तो मैं भी, मुझे भी लगता था यार 10 मिनट डिलीवरी में क्या करूंगा, कैसे कमाएंगे, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल अनटिल अनलेस योर आपका जो पॉकेट साइज होता है ना, मतलब एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो होती है वो जब तक नहीं बढ़ सकती ना, तो डिलीवरी के धंधे में पैसा कभी नहीं बनता है। ये क्लियर है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मैंने कहा यार ये जब तक ये ग्रोसरी बेचते रहेंगे तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ ही नहीं सकती। और तुम्हारे डार्क स्टोर का जो खर्चा है वो कितना ज्यादा है। जैसे लाइक आई लिव इन अंधेरी, तो अंधेरी में तेरे को अगर वो 10 मिनट में डिलीवर करना है, तो अंधेरी में तेरे को जगह लेना इज लाइक क्रेजी अमाउंट ऑफ रेंट यू नीड टू पे, बिकॉज उनकी जेप्टो की एक ऐप में कम से कम, मैंने जैसे एक एक कैटेगरी में चेक करा था एक दिन बैठ के, तो हजार हजार 1,000 प्रोडक्ट एक कैटेगरी में है। 1,000 प्रोडक्ट अगर एक कैटेगरी में है और उनके पास मल्टीपल कैटेगरी है, तो दे आर लाइक लाइक फ्लिपकार्ट को ही उसमें इंटीग्रेट कर दिया तुम्हारे को। फ्लिपकार्ट मतलब मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर लाइक आपको मिल जाते हैं। तो वो जो डीमार्ट का जो वो जो था ना, अभी क्या है, जो टीयर 1 दैट सिटी मोर, में लोग प्राइस सेंसिटिव है नहीं, सही बात तो ये है। मोस्ट ऑफ द टीयर, और वो टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में इतना बड़ा मार्केट है कि वो पूरा गेम हिला सकते हैं मतलब। पर अब सब एस्पिरेशनल हो गए, सबको कन्वीनियंस चाहिए, एंड कोविड हैज प्रीमियमाइजेशन। ब्रॉट अप कन्वीनियंस इन योर लाइफ। टेक्निकली इफ हम्म। यू गो टू सी, इट हैज स्पीडेड द प्रोसेस, ये इवेंचुअली होना ही था। वंस योर 100%। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोस अप, पीपल ओनली पे प्रीमियम्स फॉर कन्वीनियंस। हाँ। तो दैट्स द, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अच्छा आपने ब्रिंग अप किया, यहाँ पे डिलीवरू रहता है, ठीक है। लाइक हाउ इन अच्छा। इंडिया यू हैव जोमेटो, ब्लिंकिट, जोमेटो। हियर इन लंडन यू हैव डिलीवरू ओके। and Uber Eats भी होता है, but I use Deliveroo where you can even order groceries and other stuff ओके। also over here. So आपका सबसे important point in why it can succeed in India is because there's so much cheap labor available. यहाँ पे हम्म। sustainable ही नहीं है वो, because हाँ। यहाँ पे इतने आपके delivery boys है नहीं जो आप पे कर पाओगे। तो here they हम्म। will charge you things like small order fee. Like से मैंने वो दिन नैंडोज से कुछ खाना मंगवाया था, my order was below 15 pounds, so they charge you a £2 small order fee. ऑफिस। Then you're paying delivery charge also, then you're paying service charge also. So over here it's not sustainable after a point, कि इंडिया में ये सब नहीं लगता है हम्म। कि ठीक है, अभी जोमेटो पे उन्होंने वो प्लेटफॉर्म चार्ज लगा दिया फॉर हम्म। एग्जांपल। तो टू मेक थिंग्स प्रॉफिटेबल दे इवेंचुअली माइट इवन स्टार्ट, बट द मेन बिगेस्ट मोट इज दैट देयर इज चीप लेबर अवेलेबल, हाँ, और कि गिग इसका है भाई वो भी हो रहा आपको। है ना। अगर हम अपन ये देखते हैं इंडस्ट्री लेवल पे भी देखते हैं तो, या इंडिया लेवल पे भी देखते हैं तो, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत लोगों को मिला है, जो लोगों ने सोचा नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटी हो सकती थी भाई, गाड़ी चलाने से पैसा मिलेगा। वो डिलीवरी इज लाइक वन थिंग, बट भाई यहाँ पर अगर तू देखेगा, जैसे अगर मैं मेरे ऑफिस से घर जाता हूँ, उसके बीच में मुझे मिनिमम 10 लोग तो मिलेंगे ही जो डिलीवरी करने के लिए घूम रहे हैं। जोमेटो, स्विगी, और इतने सारे हो गए ना, ये इतना यहीं पे खत्म नहीं होता। अब तो दवाई भी तेरे को 10 मिनट में मिल रही है तुझे, जो चाहिए वो 10 मिनट। अब एवरीबडी थिंग लाइक फ्लिपकार्ट स्टार्टेड विद मिनट्स करके, उनका फ्लिपकार्ट का भी स्टार्ट हो गया, तो नाउ दे आर आल्सो कमिंग इनटू द 10 मिनट डिलीवरी मॉडल। तो सबको Then आना ही think about पड़ेगा it, your फ्यूचर। convenience is only going to improve further because everyone is competing so hard with each other. They will try to give you the best possible service. Because यस। यहाँ पे अगर आपको एक ऐप की अगर आदत पड़ गई, आप स्विच नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं नहीं, Like बिल्कुल। now, like as a proud shareholder of InfoEdge, I can't use Swiggy, for example. So मैं Zomato ही यूज करूंगा। आई एम जस्ट किडिंग, बट हम्म। मैं Zomato ही यूज करूंगा बिकॉज मेरा Blinkit भी इंटीग्रेट हो गया उसके साथ, बिकॉज माई 100%। स्विचिंग टू Blinkit इज ईयर। So matlab the switching cost becomes a very important factor, that my convenience is going away. हम्म। They understand, they are tracking, it's actually a data analytics company also. They खतरनाक know exactly खतरनाक। who's ordering what. They'll give you your preferences also based on past orders, वैसे ही आपको recommendations बहुत आएंगे। सुपर है उनका It's all एनालिटिक्स। an ad. बहुत सुपर है उनका So एनालिटिक्स में। जेप्टो का that was giving, यूजर इंटरफेस देख लेगा ना, तो ऐसा होगा कि भाई खोलिए ना ऐप, तो एक बार कुछ ना कुछ तो मंगा ही लेते हैं भाई। मतलब दे आर लाइक किलिंग इट। और वहीं अगर तो अपन जैसे डीमार्ट में, अब आदमी क्या होता है, डीमार्ट जाता है तो अब आदमी परेशान, उसको लगता है यार भाई एक तो लाइन में लगना पड़ेगा, एक इतना दूर है वो, correct. क्योंकि जनरली वो बिल्कुल खोपचे में रखते हैं, कोई भी सिटी के खोपचे में रखते हैं। अब क्या है फिर यार, 10 मिनट में ही आ ही रहा है, तो यार भाई 5 रुपए ज्यादा दे, ले मंगा इसको, खत्म करते हैं, वैसा हो Exactly. जाता आप एक्चुअली सरप्राइज हो जाओगे, इंडिया शुड बी गॉट डैम प्राउड ऑफ व्हाट जोमेटो एंड ऑल हैव बिल्ट। है। 100%। Deliveroo is crap front of Zomato. It's crap. Like genuinely, हम्म। the level of interface Zomato has built is world class. Like या। Indians क्या है, उनको गर्व नहीं होता ये सब चीजों का। Like they should actually be happy that such kind of stuff is there. Like if you हम्म। compare it to their competitors abroad, I think Zomato's done a top class job.
genuinely. Like the level of the app is really, really good. So Indians should now start seeing that, our kind of innovations are really world क्रेजी। class. Like people will start realizing that कि हम्म। sentiment जो है अभी ऑलमोस्ट होते जाएगा, धीरे होपफुली। धीरे, हाँ, और लेट्स सी लोग कि ऑलरेडी ऑलरेडी इट स्टार्टेड लाइक, अगर आज आज किसी से भी बात करें तो इवन गांव गांव में बच्चा बच्चा भी जानता है भाई जोमेटो स्विगी, मतलब। तो वो 100%। चीज बिल्ड किया, और वो वर्ल्ड वाइड मेरे हिसाब से धीरे धीरे अभी तो आई डोंट थिंक दे आर थिंकिंग ऑफ, बट जो मॉडल इंडिया में अगर चल जाता है ना, मेरे को ऐसा लगता है वो वर्ल्ड में चल सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पे इतने 100। इतने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सब कुछ सोच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ फेल हो गया तो कहीं नहीं चलेगा, बट अगर यहाँ सक्सेसफुल हो गया तो सब जगह चल जाएगा। See, even Uber was saying that day that India is one of the toughest markets in the world because यार यहाँ पे लोगों को बेस्ट चाहिए लेकिन अच्छे भाव पे। मतलब you know what I'm saying? It's a very tough market to crack. अगर आपने इंडिया में क्रैक कर दिया, आप तो किधर भी आप क्रैक कर सकते कहीं भी क्रैक कर सकते हो। तो आई थिंक ये तो हो गई अपने प्रीमियमाइजेशन, और ये डीमार्ट ब्लिंकिट सब हो गया। आई थिंक अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है, जो ये है कि भाई जैसे हमने स्कटलबट कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट हाउ टू स्क्रीन एन एसएम, एक एसएमई कंपनी को स्क्रीन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्योंकि देर आर मल्टीपल। अभी पहले तो क्या था कि भाई 50 कंपनी 100 कंपनी हुआ करती थी। नाउ मतलब एवरी वीक देर इज लाइक मोर देन 5 कंपनीज कमिंग अप विद आईपीओ इन द एसएमई सेगमेंट। तो हाउ you screen as a value investor in an SME segment or micro cap, you can take like 500 crore, below 500 crores, how you pick the company? So see, that's a good question. So actually, here for retail investors, it's a little tougher to screen because on screener and all, I don't think till now there's an only SME filter, right? No, Like वो हाँ, अब तक है नहीं। नहीं है अभी तक। So I have a little bit of privilege over there because we use Ace Equity. तो वहाँ पे Okay. एक रहता है कि all SMEs करके है, तो सब SMEs का आ जाता है। तो how I start screening is I look at all the SMEs which are currently listed. तो हम लोग हम्म। प्री आईपीओ सिर्फ पर्सनल कैपेसिटी में करते हैं। In our ओके। prop funds, we don't do it for clients. ओके। So I look at companies only after the IPO का वो लॉक इन रहता है ना, कि there's usually quite a lot of forced selling which happens after the हम्म। IPO लॉक। मैं उसके बाद ही देखता हूँ कि तभी अच्छा, एक्चुअल एक महीने में आई वैल्यू थिंक ऑफ 50% सेल करना पड़ता है, एंड 3 महीने में आपको फिफ्टी करेक्ट। परसेंट सेल करना पड़ता है, तो एंकर इन्वेस्टर जब एग्जिट ले मैं रहा होगा यूजली तो। 3 मंथ्स पोस्ट आईपीओ ही देखता हूँ हम्म। मोस्ट ऑफ द हम्म। टाइम्स। So how I do it is I take all the SMEs, then I look at the 5 year past sales growth CAGR। वहाँ पे आप बिलो जीडीपी ग्रोथ का अगर सेल्स CAGR नहीं हो 5 years, वो कंपनीज को हटा दो कंप्लीटली। करेक्ट। ठीक है। हम्म। एंड आई ऑल्सो रन दैट स्क्रीन वेर आई वाज टेलिंग अबाउट दैट कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, वो मैं दूसरा स्क्रीन रन करता हूँ। तो यू हैव टू कीप प्लेइंग अराउंड विथ योर स्क्रीनर, लाइक देयर इज नो वन फिक्स्ड स्क्रीन। ओके। देन लेवरेज के लिए एक स्क्रीन रहता है। आई स्टार्ट रिमूविंग कंपनीज विच आर एक्सेसिवली लेवर्ड। प्रमोटर होल्डिंग अगर 50% से कम है, मैं नहीं देखता यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आई हम्म। वॉन्ट सम स्किन इन द गेम इन एसएमईज बिकॉज हाँ, क्या बाकी है कि इट्स अ मतलब। रिस्की। इफ द promoter is losing, like only then it makes sense, like he has to have skin in the game। तो हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एस इक्विटी एक्चुअली हैज दिस रियली वन नाइस फीचर वेयर यू कैन चूज बिजनेस डिस्क्रिप्शन। तो आपको समझो अगर 600 एसएमईज है, वो सब कंपनीज का आपको 2 लाइन में डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि क्या करते हैं। क्या करते हैं बेसिक। ठीक है। हम्म। तो वहां से आपको बहुत ऐसे ट्रेडिंग कंपनीज दिखेंगे, तो यू स्टार्ट रिमूविंग ऑल ऑफ दोज जहाँ पे वैल्यू क्रिएशन नहीं हो सकती। सो एनी एक एबिटा मार्जिन का देखता हूँ मैं, लाइक कंपनीज वेयर द मार्जिन इज मोर देन 10% एबिटा मार्जिन, आई स्टार्ट लुकिंग एट दोज व्हाट डू दे डू एग्जैक्टली। हम्म। वंस योर रेडी स्क्रीन इज मेड, लाइक से आउट ऑफ 500 आपने फॉर एग्जांपल 50 कंपनीज आपको पसंद आए, फिर हम्म। उस पे आप डीप डाइव करना शुरू करो। तो हम्म। देन यू गो ऑन योर स्क्रीनर, तिजोरी, वैल्यू पिकर, एनुअल रिपोर्ट्स, एवरीथिंग, गो थ्रू ऑल ऑफ दैट एंड देन स्टार्ट रीडिंग, लाइक एंड देन आफ्टर दैट आप बस गूगल सर्च करो, बहुत बार वो कंपनीज पे कोई न्यूज आर्टिकल्स आ जाएंगे। आई रीड क्वाइट अ फ्यू बिजनेस मैगजीन्स ऑल्सो, लाइक योर ओके। बिजनेस टुडे, बिजनेस इंडिया। वहाँ पे हम्म। आपको कभी कभी कुछ ना कुछ एसएमई के बारे में मिल जाएगा। लाइक आई फाउंड अ हम्म। फ्यू गुड आइडियाज आउट ऑफ दैट। लाइक आई टेल यू दिस वन एसएमई कंपनी कॉल्ड प्रॉप इक्विटी पी एनालिटिक्स। वो भी मेरे को एक बिजनेस टुडे के मैगजीन से ही आइडिया आया था अच्छा। कि वहाँ पे एक रियल एस्टेट का कुछ तो डेटाबेस, दे वर टॉकिंग अबाउट सम रियल एस्टेट डेटा, सो द हम्म। सोर्स रिटन ओवर देयर वाज प्रॉप इक्विटी। ओके। सो आई वाज लाइक आई रिमेंबर दिस नेम कि बेसिकली सिंस आई यूज डेटाबेसेस, मेरे को याद था कि रियल एस्टेट का डेटाबेस प्रॉप इक्विटी। तो हम्म। फिर मैंने बस गूगल सर्च किया, देन आई सॉ दैट रिसेंटली एसएमई लिस्टिंग हुई है एंड हम्म। ऑल ऑफ दैट, देन आई स्टार्ट टेकिंग। So prop equity, it's a 40% EBITDA margin business. They ओ। have cash on the balance sheet, no debt.
ये टाइप के एसएमईज ढूंढने चाहिए, मतलब हाँ। कि वेयर like the operating leverage can kick in and you're able to scale up the business. And then I started reading more and more. I got a meeting with the promoter, spoke to हम्म। him. I saw कि नए initiatives क्या आने वाले हैं, because हम्म। after a point that database business was a cash cow. He was funding new initiatives from that database business. हम्म। So, like, just reading will never go to waste. Just keep reading. You'll always find something good. Then you have to go through all the company's documents, BSE circulars, try and dig out data wherever you can. You have या to, scan the financials एकदम in depth. DRH भी And देख लो, RH भी आपको देख लो। क्या हम्म। RHP देखना है पूरा। फिर आपको बेसिकली क्या असेस करना है कि ये बिजनेस कहाँ तक स्केल कर सकती है, क्या चैलेंजेस, क्या रिस्क हैं, एंड इवेंचुअली व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ तो आप हम्म। लेके आओगे, ठीक है, बट वो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ कैसे होगी, रेवेन्यू रिकग्निशन, विल इट फ्लो इनटू द कैश फ्लो और नॉट, और विल इट लाइक, तो बहुत बार यू विल फाइंड ग्लेयरिंग अकाउंटिंग एरर्स इन एसएमईज। बहुत वो लोग बस स्क्रीन पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जब आप एक्चुअली कैश फ्लो खोल के देखोगे कितने बार तो क्या क्या एलोकेशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने कोई शॉर्ट टर्म लोन ले दिया, वो डाल रहे हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो में ऑपरेटिंग कैश कि फ्लो इट्स में अ डाल कैश दो। इनफ्लो। वो हाँ, भी तो एरर मतलब होती ये है। टाइप के एरर्स कभी कभी ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड बी। ऑडिटेड ऑडिटेड कैश फ्लोज ऑडिटेड वो कैश फ्लोज सीए ने साइन करके अप्रूव किया है। हाँ यू हाँ, विल बी अरे वो क्या सरप्राइज्ड। होता है ना कि वो तो कंपनी छोटी सी होती है तो 10-15 लाख रुपए वो देते हैं। तो 10-15 लाख रुपए में क्या होता है कि वो जो करेक्ट आता है वो प्रोपराइटर सी होता है। एंड वो क्या होता है ना, अभी जब करेक्ट मैं तेरे को एग्जांपल बताता हूँ, एक कंपनी में मैं भी देख रहा था। तो तो अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लो में क्या होता है, जनरली आता है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। तो इट्स लाइक नॉन कैश एक्सपेंस, तो आप हम्म वहां से आप उसमें आइडिया लेस करते हो। बट आपका टोटल सेल ऑफ करेक्ट योर इन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ फिक्स एसेट कम्स इनटू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट उन्होंने क्या किया, पूरा ही उसका ऊपर डाल दिया। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज अब इन्वेस्टिंग कैश फ्लो का अमाउंट ही ऊपर आ गया तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो पूरा ही तेरा चेंज हो गया। तो तेरा जो डिसीजन मेकिंग अगर क्या करेक्ट। ऑपरेटिंग कैश फ्लो देख के ही ले रहा था, तो तेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा पॉजिटिव है, बट अगर उसको हटा देंगे तो इट्स नेगेटिव। तो आपका डिसीजन ही चेंज हो गया उसके बेसिस। तो और देन अकाउंटिंग या वन भी इम्पोर्टेंट स्क्रीन छोटी है। जगह पे होती तो बहुत प्रॉब्लम है फिर। 100%। एक और इम्पोर्टेंट स्क्रीन है, मैं एबिटा नेगेटिव को बिल्कुल देखता ही नहीं हूँ। लाइक इफ इट्स वो लॉस तो। मेकिंग ऑन द एबिटा लेवल, डोंट डिग। लाइक देयर इज नो पॉइंट। एंड व्हाट यू शुड डू इज 3 years एवरेज ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड 3 years एवरेज पैट, उसका रेशियो क्या है। इफ हम्म। इट्स बिलो 70% थ्रू आउट, रिजेक्ट। हम्म। बिकॉज इट्स क्लियर कि आपका कुछ ओवर 3 years एवरेज भी आपका अगर 70% के नहीं बैठ नीचे रहा जा है। रहा है, देयर समथिंग रॉन्ग इन द नंबर्स फॉर श्योर, कि आपका हम्म। कैश फ्लो में कुछ जा ही नहीं रहा है। वेयर इज दैट मनी गोइंग। फिर आपको सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स देखने हैं कि कंपनी केपेक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहाँ से बिकॉज पैसे। आफ्टर ऑल यू नीड सम कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ, कि अगर वो 100% यूटिलाइजेशन पे है, उसके आगे क्या। लाइक हम्म। आई यू आर नॉट इन्वेस्टिंग बिकॉज अरे हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, इन्वेस्ट कर लेते हैं। यू हैव टू लुक एट फॉरवर्ड ग्रोथ ओनली बाय द एंड ऑफ इट। क्यों, अगर ग्रोथ के एवेन्यूज नहीं है तो फिर मत देखो। इन दैट सेंस कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट्स विजन, कि बाय द एंड ऑफ इट आपका सब प्रमोटर पे ही निर्भर है। अगर वो हम्म। एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो तभी आपके पैसे बन पाएंगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रमोटर्स ट्रैक रिकॉर्ड वेरी वेल, कि उनका पास्ट क्या है एंड व्हाट इज ही सेइंग। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एसएमईज में आपको मिलेगा नहीं, बट इन स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स आपको दिख जाता है कि इन द पास्ट व्हाट हैव दे सेड वर्सेस व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैव दे सेड व्हाट हैज हैपेंड, हम्म। वही देखना है आप। हाँ। देन you automatically understand कि प्रमोटर का गाइडेंस कितना डिस्काउंट करना है। लाइक आई हैव हम्म। सीन अ फ्यू कंपनीज हु गिव वेरी बिग गाइडेंसेस, यू शुड टेक इट एट फेस वैल्यू। कि फॉर एग्जांपल ही सेइंग आई विल ग्रो एट 20%, 30%, यू अज्यूम दैट चलो ही बेयर मिनिमम ग्रो बिटवीन 12 to 15%। तो फिर आपका एक जजमेंट तो बन जाता है कि इतना मार्जिन ऑफ एरर के लिए आप अकाउंट कर सकते हो। हम्म। सो there's this nice tool called reverse DCF also, where यस। you get the expectations baked into the stock price. कि That I use कितना a हो lot. सकता है। वो मेरे को अच्छा लगता है। Like, that's a very nice tool. So if like small caps के लिए you use a higher discount rate, like say 15%, 14% का discount rate लगा के आप फिर evaluate करो कि यूएस already कैलकुलेट कर अगर सकते हो। MPI 30%, 40% का है, तो फिर आपका margin of safety बहुत कम है। हम्म। Like it's tough to achieve that over a 5 year period. तो हम्म। वैसे स्क्रीन करते हैं हम। एंड लाइक यू हैव टू, मेन थिंग आई वुड से इज द बिजनेस मॉडल। लाइक अगर आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस, तो फिर आप उस पर इतना इन डेप्थ जाओ ही मत। लाइक कोई मेरे मतलब को नहीं। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी इतना समझ में नहीं आता है, बिकॉज दिस इज द ओनली इंडस्ट्री वेर योर इन्वेंट्री इज अप्रिशिएटिंग। और कोई हम्म। इंडस्ट्री में ऐसे होता नहीं है। तो इन्वेंट्री में इतने झोल होते हैं, तो मेरे को उनका समझ में अकाउंटिंग नहीं पे आता भी सही ट्रस्ट नहीं में। रहता है।
कैश 100। ट्रांजैक्शंस कितने हैं, समझ में नहीं आता है, तो आई स्टे अवे फ्रॉम ज्वेलरी एंड रियल एस्टेट मेनली. लाइक आई डोंट यूजुअली इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज, बट ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज अट्रैक्टिव एट अ सर्टेन प्राइस. अगर बहुत डीप डिस्काउंट पे बहुत कुछ ज्यादा मिल रहा डीप। है. तो ये So सही now सही। my firm's philosophy, like I've given very clear instructions to the team that we have to stop looking at brick and mortar oriented kind of companies. Like I will not look at Mart, I'll look at a Zomato or a quick commerce based company, because I'm seeing clear consumer shifts. Like consumer habits जब change होते हैं ना, बहुत ही important factor है. और अभी इंडिया का पूरा consumer habit ही change हो रहा है. I stay away from banks also. मैं I'm looking for 20% growth. banks में वो मेरे को दिखता ही नहीं है. Like NBFCs में कभी कभी you can find over there, but banks usually बाकी, financials में इतना और उसमें टच नहीं इतने करता. मूविंग पार्ट होते हैं बैंक्स में। मतलब आप मान लो सब कुछ सही है, तो उनका जीएनपीए बढ़ गया तो भी गेम ओवर हो गया। अगर ऑन द उसका वेस्ट. सब कुछ सही है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया उसका, लोन ग्रोथ कम आ गई, तो देयर आर टू मेनी मूविंग पार्ट्स इन केस ऑफ बैंक्स। आई इवन आई डोंट लाइक, मतलब वो ज्यादा बेसिकली मैं आप भी नहीं प्लेइंग देखता। इकोनॉमी, राइट? आप बेसिकली इकोनॉमी को प्ले कर रहे हो, उसमें आपको हम्म, एक दो खराब सेक्टर हर साल मिलने ही वाले हैं जहां से एनपीए आएगा, कुछ स्लिपेज भी आएगी होता वहां है। से. द मोमेंट एसेट क्वालिटी गोज अप गोज डाउन, देन योर वैल्यूएशन मल्टीपल्स आल्सो गो डाउन. हम्म। सो आपका बुक वैल्यू एरोड होते जाएगा, मोर एंड मोर एनपीएस दैट कम इन आप रिकग्नाइज करोगे, हाँ। प्रोविजनिंग ऊपर जाएगी. अभी अभी रिसेंटली सो देख लो, मनप्पुरम जैसी कंपनी में आशीर्वाद को लोन देने से आरबीआई ने मना किया। अगले दिन 10 टका ठोका। 10 क्या, 15 15 20 टका ठोका उसको। अब वो हाँ. कंपनी का अगर आशीर्वाद देखेगा तो आशीर्वाद का टोटल अगर बुक देखेगा फॉर द मनप्पुरम, इट्स 10% ऑफ देयर एसेट्स टोटली। उसको, उसके चक्कर में रेगुलेटरी इश्यूज ऑल्सो देयर, मतलब उसमें इतने मूविंग पार्ट्स हैं कि अब आपको पता ही नहीं। अब जैसे आशीर्वाद में अगर जैसे तू और मैं एनालाइज कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे कि 10% ऑफ द बुक है, ठीक है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, अगर प्रॉफिट मेकिंग है, इट्स ओके, तो अपन इतना ज्यादा तू ध्यान नहीं देगा। बट अगर वो 10% के कारण तेरा स्टॉक में इम्पैक्ट इज लाइक मोर देन 20%, तो but फिर, that's actually giving you an opportunity also sometimes. हाँ, कि समटाइम्स overreaction गिव यू एन नहीं होता. अपॉर्चुनिटी, बट मैं बता रहा हूँ कि देर इज टू मेनी मूविंग पार्ट्स, लाइक, Correct. तो उनको समझना बहुत डिफिकल्ट है कि कब क्या हो जाएगा, आपको पता नहीं है। वो जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा, हो गया गेम। फिर वैसा। But that way, financializing as a theme will, of course, go up, but there's better ways to play it. Like या, your wealth management firms वेल्थ are a much better way मैनेजमेंट to द play. बेस्ट बेस्ट। Your brokers are a much better way, because at least ये तो structural theme है ही कि और barely 7-8% of India invests. अगर ये 7 का 15 अगर हो गया, look at the delta you're capturing. 100%। मतलब और इंडिया होगी तो है ही पक्का. मैं वो अभी स्टोरी यूके तो में बैठा, आई इंटेक्ट ही कैन सी रहेगी। दैट देयर इज अ स्लो डाउन. उसमें तो हम्म। ग्रोथ का तो मेरे को बिल्कुल डर नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू आर बेटिंग ऑन द राइट कंपनीज एंड दे डू व्हाट दे बस। से. आई एम नॉट वरीड अबाउट द ग्रोथ एस्पेक्ट. लाइक हम्म। वो इट्स वेरी क्लियर. लाइक आई हैव विजिटेड क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स. मैं यूएसए गया था 2 साल पहले. आई वेंट टू साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके. नाउ आई एम इन यूके फॉर अ ईयर. So you can understand on a global perspective also that India is very, very well poised. And when हम्म। you speak to people from there, they also know what's going on in India. So that becomes a very important sign कि लोगों को genuinely मालूम है कि इंडिया में विकास आ रहा है. यस। Genuinely, like it's very clear कि यहाँ पे I'm seeing like a few of my friends, like I'm not looking for a job over here, but मेरे बहुत colleagues और friends हैं, 6-6 महीने के लिए jobs नहीं मिलते हैं यहाँ पे. ओ। Like जॉब का बहुत शॉर्टेज है यूके में. इट्स अ हॉरिबल जॉब मार्केट एट द मोमेंट. हम्म। सो इट्स क्लियर दैट अभी आप ट्रेंड देखोगे और लोग इंडिया वापस आते जाएंगे, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग हियर इज सो हाई. तो है। आफ्टर अ पॉइंट आप बचा नहीं पाओगे. इंडिया में क्या है, आपका कन्वीनियंस की वजह से बहुत कुछ बचाव हो सकता है. बाय लाइक फॉर एग्जाम्पल आप फैमिली के साथ रह सकते हो. यहाँ पे इट्स एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, हम्म। राइट? सो I would say that the trends are very much in India's favor. It just depends on how things are executed. यस। Like वो India story, मैं like तो all कोई the डाउट ही नहीं funds है। are not crazy. Like मेरा हाँ। 100% allocation is towards India. मैंने अब तक international equities explore ही नहीं किए, because मेरे को इतने opportunities दिख रहे हैं इंडिया में. और इंडिया Literally. लाइक, इवन इफ यू से कि एसएमई में भी, तो अगर अभी देखो ना, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बिल्कुल ही हिडन सेक्टर, मतलब वो कंपनीज लिस्टेड में, मतलब मेन बोर्ड पे है ही नहीं। अगर आपको वो चीज प्ले करनी है तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोक्सीज होते हैं जहाँ पर देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू कैन बी क्रिएटेड, बट वो लोगों को पता ही नहीं थी कि भाई यार ये ऐसी कंपनी भी है। बट इंडिया में क्या है ना कि आज अगर आपको 100 करोड़ की कंपनी मिल रही है, आपको 100 करोड़ वाली कंपनी भी आपको देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम बाहर भी अगर देखते हैं तो इतनी छोटी कंपनी जनरली लिस्टेड नहीं होती है।
बट वो उसमें इतनी ग्रोथ आ सकती है क्योंकि जिस तरह से पीएलआई स्कीम्स आ रही है, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ रही है, जिस तरह से एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग पूरा सेटअप इंडिया में धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है। तो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज ह्यूज, मतलब मेरे को इंडिया ग्रोथ स्टोरी में तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब वो हो सकता है कि आपका थोड़ा यू नो वो जो 5 साल में जो ग्रोथ आने वाली है वो थोड़ी सी स्टेगनेंट हो जाए, डिले बीच हो सकती में है। स्टेगनेंट हो जाए। बट आई डोंट थिंक, अगर आप राइट प्रमोटर्स, राइट सेट ऑफ सेक्टर्स में आपका लोकेशन है, तो मतलब आप पैसा बना के ही निकलोगे एब्सोल्युटली इंडिया में। गलती आप करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। मुश्किल। Like, see, if you put those bare minimum financial filters, you're not buying overly leveraged companies, growth अगर आ रही है, promoter decent है, you're not buying at ridiculous valuations, you should be 100%। fine. हंड्रेड Like, परसेंट I don't look at the index that much. मैं stock specific approach ही follow करता हूँ. Because क्या होता है कि the stocks I'm looking at are not affected by the index at all. Like कितने बार, for example, the Nifty has gone down 500 points and this stock has gone up. मतलब correlation बहुत बार नहीं होती है. तो मैं वैसे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज भी नहीं करता टू हेज, बिकॉज क्या होता है कि बहुत बार आपका इंडेक्स आप हेज करने गए हो अगेंस्ट अ स्टॉक, बट उसका पूरा उल्टा कोरिलेशन हो गया है, सो देन हंड्रेड टेक्निकली परसेंट। योर हेज आल्सो बिकेम और एब्सोल्यूट मेरे को ऐसा गॉर्बेज। लगता है कि, सॉरी टू कट यू, बट मेरे को ऐसा लगता है कि बताऊं, निफ्टी या मतलब जो भी बेरोमीटर्स बनाए गए हैं, अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में क्या है ना कि यार सेंसेक्स भी देखो या निफ्टी भी देखो, इट्स अ वेरी स्क्यूड इन द नेचर। आज अगर या रिलायंस, फाइनेंशियल। हाँ, फाइनेंशियलाइजेशन मतलब फाइनेंशियल थीम है, प्लस रिलायंस है, मतलब ये दो को मिला दिया ना तो आपका 50-60% ऑफ द, उससे भी ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ उससे भी ज्यादा आपका निफ्टी कवर हो जाता और है। या 60%, 60 to 65 उसमें कवर कुछ हो भी जाता है। हुआ, रिलायंस में आज मतलब क्रूड के कारण कुछ भी हुआ तो आपका पूरा निफ्टी तो नेगेटिव है। बट करेक्ट। आपका जो ओवरऑल, जैसे आज तेरी कंपनी अगर ऑटोमोटिव में है तो उसमें इतना बड़ा इम्पेक्ट ही नहीं है। तो करेक्ट, कुछ लेना देना ही नहीं है। कुछ लेना देना ही नहीं है, तो आपको हेज करके, तो मेरे को भी लगता है, हेज तो मैं भी नहीं करता हूँ, बट मेरे को लगता भी नहीं, क्योंकि यार अगर आपका एक्सपोजर उस तरीके की, जैसे अगर मैंने निफ्टी का पोजीशन लिया, मतलब मैंने निफ्टी 50 के स्टॉक्स लिए हैं, तो उसको मैं हेज करना फिर बने भी। अगर आपने निफ्टी 50 में लिया ही नहीं है, क्योंकि आई एम ऑल्सो मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप टाइप ऑफ इन्वेस्टर, तो मेरा हम्म, इतना ज्यादा पोजीशन निफ्टी निफ्टी 50 कंपनीज में होता नहीं, कभी कभी एक दो कंपनीज में होता है। तो उसके लिए फिर मैं अगर हेज करूंगा तो मेरा तो पोर्टफोलियो फिर वो फालतू का नुकसान खा रहा हूँ मैं उधर हेजिंग का। हम्म, वैसी बात हो जाती है। बट यार नाइस सही पॉइंट्स। बात है। या 100%, लाइक बाय द एंड ऑफ इट, इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग भी अभी बढ़ रहा है काफी, ट्रेंड, ईटीएफ्स एंड ऑल दैट, जैसे फॉर इन्वेस्टर्स हु डोंट हैव द टाइम, ठीक है, यू कैन गो अहेड विद दैट, बट आई फील बाय द एंड ऑफ इट, बाय द एंड आपका पैसा किधर बनता है, जब आपका कैपिटल एलोकेशन थोड़ा साइजेबल हो, कि सही, आपका अगर 1% एलोकेशन कंपनी डबल हो गया तो क्या फायदा हुआ, कोई 10% मतलब। एलोकेशन, 12% एलोकेशन था तभी कुछ फायदा हुआ ना। तो आई वुड हम्म। से इट्स बेटर टू हैव, लाइक 10 to 12 stocks having 80% of your portfolio, and उनका 20% you keep for हम्म। smaller size. 100%। But you should have that concentration for at least 80. That 80-20 rule is very important. पर हिट हो, They यस। say that 20% makes up for the 80%, but here in investing, I would say 80% is your bulk. Like वहां पे आपका पैसा बनना चाहिए. Like हम्म। 20% you can play around ठीक with है। smaller bets. But यस। you need concentration for sure. नहीं तो आपके outsized returns आ नहीं सकते. Then you'll stick to like a 14-15% compounded return. Like my internal target's very tough to achieve, but my father and I, we have a target that in 3 years your portfolio has to double. Otherwise, you're not doing your job right. So I'm यस, looking at a 26% CAGR over 3 years. नहीं तो क्या, इतना रिसर्च करके क्या फायदा है फिर क्या उसका, कुछ मतलब। interest तो अगर होना चाहिए खुद ना, के लिए which पैसा नहीं बना पाए तो उस रिसर्च का कोई मतलब नहीं है, सही बात है, इट्स। 100%. So हम्म। we set ourselves at a pretty high target कि Nifty returns say you're trying almost 2x if you go to see 13-14% का डबल आप मांग रहे हो. So it's a very tough job because drawdowns आते हैं when the markets are tough, small caps crack heavy, टाइम लगता है रिकवरी के लिए. हंड्रेड बट परसेंट अभी क्या है कि इंफॉर्मेशन has started getting digested so fast that it's the bounce backs are also very fast. Like आपका ड्रॉडाउन आता है लेकिन उसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी आती है वो भी बहुत फास्ट आता है। बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन सिमेट्री. पहले क्या होता था, लोग इतने अवेयर नहीं होते थे, अभी मार्केट्स बहुत इवॉल्व हो गए हैं, पार्टिसिपेशन भी बढ़ गई है, फंड्स भी बहुत आ रहे हैं, आपका ग्रॉस इनफ्लो हर महीने का 20,000 करोड़ से ज्यादा है. नेट इनफ्लोज आर ऑल्सो रेंजिंग ओवर $1 billion पर मंथ. सो दे आपका जितना भी एफ आई आई सेलिंग हुआ है ऑफ से 70-80,000 करोड़, द एंटायर थिंग हैज बीन लैप्ड अप बाय रिटेल एंड डी आई आईज. रिटेल, यस, वो तो क्रेजी चल रहा इतना है पैसा भाई। साइडलाइन रखा है. लाइक आई वुड से दिस इज अ की मेट्रिक टू ट्रैक कि हाउ मच आर द इनफ्लोज स्लोइंग डाउन. द मोमेंट यू सी लिक्विडिटी इज ड्राइंग अप, योर वैल्यूएशंस विल ड्राई अप फॉर श्योर. लाइक अभी 100%।
you will see assets shifting away. Like suddenly people move more towards fixed income. बट अभी तो एफआईज ने पैसा निकाला है, जब यूएसए में और फेड रेट कट्स आएंगे तभी भर भर के पैसा इंडिया में ही आएगा और कोई फॉर श्योर, आपके पास बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यूरोप इज स्लोइंग डाउन, चाइना इज स्लोइंग डाउन, व्हाट अदर ऑप्शन डू यू हैव? आपको थोड़ा बढ़ के एलोकेशन देना ही पड़ेगा। बिकॉज सी ऑप्शन नहीं है। चाइना क्या है कि इंडिया हैज अ वेरी क्लियर लीगल सिस्टम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे क्या है, इट्स ऑल इन दी ओपन। Like people may say whatever by the end of it, but there are many checks and balances where at least your money is never stuck. चाइना में यस, क्या होता है, आपका पैसा भी सीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Like and even the वहां की तो, और गवर्नमेंट data भी सपोर्ट नहीं करेगी भी आपको एट द reliable. एंड ऑफ द। मतलब इट्स देयर से बाय द एंड ऑफ इट। यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट योर मनी इज सिक्योर, you know यस। that it's not going to be taken away. Like Mark Mobius, I remember a few years ago, he used to say that my money is stuck in China, they've seized it. Like उन capital invest किया हुआ था चाइना में, so this is a very important risk. That's why Chinese multiples are low for a reason. यस। Like smart money has priced them correctly. आप अगर 25 साल चाइना का देखो, पैसा ही नहीं बना है। हम्म। जीडीपी कहाँ से कहाँ चले गया, इंडेक्स में कुछ नहीं बना है। Why? इंडेक्स में कुछ नहीं हुआ। People know that the data, there's something which is not making sense. Otherwise, by the end of it, everywhere the rules are the same. Earnings play. It's all on earnings. कि आप बढ़ावा दिखा रहे हो earnings में, आपका stock price ऊपर जाएगा ही. Like 100%। there's no two way. So India, at least your data to an extent, it's all very clear. There are many good systems in place. So I feel that the kind of flows which India will see, like ये इनको क्या कहते हैं, capital injections. ये 1990s में हुआ था चाइना में, ये अभी इंडिया में हो सकता है। जो पैसा निकल रहा है अभी, जो वापस आएगा when FIs come back, they are now I think around 16% of the market, which is a decadal low. Base effect भी है अभी, market cap of India has also gone up. उसके लिए थोड़ा डाइल्यूट हो गया होल्डिंग, बट से अगर 16 से वापस 20 तक का चले जाता है ड्यू टू capital being injected, the kind of inflows you'll see, the liquidity you will see, capital formation बढ़ेगी, because if they are moving towards becoming the third biggest economy by 2030, capital formation is a must, उसके बिना हो ही नहीं सकता है। और यहाँ यस। पे as I was telling you, SMEs and all that, bulk of your Indian GDP is through MSME only, if I'm not wrong। यस, यस। वहाँ से ही सबसे ज्यादा। तो जब तक वो ग्रो नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं पॉसिबल। एग्री। it's very it's very important that capital formation happens. So उसके लिए मैं बैंक्स का भी, मेरे को यही लगता है कि people are seeing better avenues to park their money. Deposits and building CASA and banks won't be so easy anymore. ये growth rates of CASA and all of that, there will be challenges 101%, because पैसा और किधर जा रहा है, सब क्रेजी अमाउंट equity ऑफ finance। लिक्विडिटी इन द सेकेंडरी मार्केट। आई थिंक वो जो डिपॉजिट वाला जो था, म्यूचुअल फंड सही है का सही में अभी सही हो गया है वो। सही हो गया असली जेन्युइनली। में मार्केट एक में डाल रहे हैं। जिनके पास देखिए हुआ फ्रॉम द सैलरीड क्लास एंड आर कीपिंग द एसआईपीज इज द बेस्ट वे टू प्ले इट, व्हाई नॉट? लाइक एटलीस्ट यू यस। आर इन्वेस्टिंग योर सेविंग्स इन अ गुड वे। या। लाइक जो पीएमएस के लिए रहता है, इट्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइंटेल, एचएनआईज के लिए है, दे वांट टू टेक अ हायर रिस्क आल्सो। लाइक हम्म। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, दे ओवर डाइवर्सिफाई अ लॉट, राइट? लाइक हम्म। उनके बहुत ज्यादा स्टॉक्स होंगे कम एलोकेशन के साथ। पीएमएस इज यूजुअली आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड यस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो या, definitely that's a good way to approach. India story is definitely clear. मतलब over the last 2 years we've just been reconfirming that again and again. हाँ। जितने भी so by the end of it, markets are भाव भगवान छे, सब मार्केट बोल ही रहा है क्या हो मार्केट को तो प्राइस बता ही रहा देती है। एंड आई थिंक यू मेड द राइट पॉइंट कि लिक्विडिटी इन द मार्केट इज टू हाई, कि आपका पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ होगा। क्योंकि अगर आप 20,000 25,000 करोड़ तो आप ऐसे भी में हर साल हर महीने ऐड कर रहे हो, एंड कोई निकाल नहीं रहा है। देर इज नो, मतलब अगर तू देखेगा, आई थिंक मेरे हिसाब से 2020 के बाद कोई ऐसा महीना है ही नहीं जिसमें नेगेटिव या हाँ, ग्रोथ नहीं। नेगेटिव इन्फ्लोज नहीं आए कभी भी। हाँ, हाँ। नेट इन्फ्लोज नेगेटिव नहीं गए हैं सिंस द नहीं गए हैं। और उसमें जो ग्रोथ भी है वो थोड़ी बहुत ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई है, बट आई थिंक स्टिल द नंबर इज टू हाई, बिकॉज इंडिया ने कभी इतना नंबर देखा ही नहीं। 20 Why do you think the मतलब index has managed? अगर FIs was selling at बाकी this rate, the पॉसिबल ही नहीं market would है। have crashed horribly. हाँ ना, 100%। DIs ने सपोर्ट किया, that's why पहले it used to be an FI dominated market, अभी उनका है ही नहीं अभी है ही उतना नहीं। इन्फ्लुएंस। एंड आई अब थिंक बहुत सारे जो पीएमएस। DIs ज्यादा है। नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे पीएमएस करने वाले, बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट, वो भी उनका भी थ्योरी फेल हुआ है, क्योंकि एवरीथिंग टिल नाउ एवरीथिंग इज बेस्ड आउट ऑफ कि भाई एफआईआई बेच रहा है, मतलब प्रेशर रहेगा मार्केट में, सब कुछ। तो सबकी जो थॉट प्रोसेस थी वो अभी, जैसे तू और हम्म, मैं
अपन 2017-18 के बाद मार्केट में आए हैं, तो अपन ने कभी इतना वो प्रेशर देखा नहीं। और अपन ने जब भी हाँ मार्केट देखा तब रिटेल ने संभाल लिया। मतलब इट इज करेक्ट पॉजिटिव ऑल्सो, करेक्ट नेगेटिव ऑल्सो, बट क्या है कि जो बेस रिटेलर बनाता है ना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना इतना तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है। एफआईआई ने बेचा माल तो वो तो एक दिन में 1% भी बेच के निकल सकते हैं मार्केट से। बट जो Correct, रिटेलर वो ने तोड़ खरीदा के है, बेचेगा। हम्म। रिटेलर ने जो खरीदा है उस वो ना तो बेचेगा, वो इतना आसानी से बेचता नहीं है। और उसके बाद है ना आपका एक करेक्ट। प्राइस सेट हो जाता है, तो अब फिर एफआईआई को ही महंगे में खरीदना है। जो तू बोल रहा है कि यार भाई एफआईआई को बाद में आना ही पड़ेगा, क्योंकि यूएस यूके में तो हालत खराब ही है, और अगर इंटरेस्ट रेट डाउन जाना ही है तो पैसा कहाँ डालोगे आप? इंडिया के अलावा आपके पास ऑप्शन आप नहीं अगर बोल रहे हो FIS का, दे आर सो apparently focused on valuations है। apparently, right? If you look at the shareholdings of ABB, Siemens, all of Hitachi and all of that, हाँ look at the valuations at 200 times earnings, भर भर के इन्फ्लोज आ रहे हैं। मतलब वहां पे वैल्यूएशन नहीं दिखता ऑल ऑफ अ सडन। हाँ, सो इट्स वेरी बायस्ड, कि उनको MNCs के लिए वो प्रीमियम देने के लिए तैयार है, बट एक्चुअल जेन्युइन कंपनीज ग्रोइंग इन लेकिन इंडिया कंपनी at तो 80% there they are saying oh valuations are stretched, so it's all your perception by the end of it कि कैसे आपको देखना है। एंड इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ना ही है बिकॉज सी योर रेंटल यील्ड्स आर नॉट दैट इंटरेस्टिंग एनी मोर, यू आर नॉट इवन कुछ नहीं बीटिंग है, इन्फ्लेशन कुछ थ्रू भी योर नहीं रेंटल है। यील्ड्स। तो पैसा रियल एस्टेट में धीरे धीरे करके एक्विटीज में आते ही जाएगा। द शिफ्ट इन एसेट क्लासेस विल डेफिनेटली गो अप। कि यस, रियल एस्टेट में आई 100%। थिंक 50% ऑफ इंडियाज वेल्थ इज इन रियल एस्टेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, राइट? या तो वो कम होते जाएगा। अभी पीपल आर, वो फोमो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टू क्रिएट that entire thing. You need to show that I made so much money in the stock markets, other people start getting loud. या या But अभी क्या है कि it's not a one way market। मतलब आज भी for example correction आ गई market में, say your small caps have all cracked 4-5%, so it's not that it's a one way market, it's a genuine market। मतलब लोग यस। पैसा भी निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। It's a genuine proper structured market, so it's not going to be हर दिन लड्डू नहीं मिल सकते। You have to stick to the corrections. So या people will slowly get used to it. Like there's a lot of, I think our average age of investing also, like whoever the new demat accounts are, they're all young people, right? यस So they यस। are all relatively new to the market. So slowly people will start understanding that this is not an easy way to make money. Like you have to stay invested for long periods of time. So abhi your F&O participation will also start getting curbed. कि, या a lot of people are not being, like I think the SEBI chairperson themselves said that a lot of unproductive time is going away in F&O. So they've started bringing in more and more higher margins, which I think is a very good thing. हाँ, मार्जिन भी बढ़ा कि दिए, लोड साइज भी बढ़ा दिए, तो वो बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस। वो इंडिया का रेगुलेटर मेरे को नहीं लगता कि मतलब देयर इज अ चैलेंज इन रेगुलेशन। वो ओवर रेगुलेशन अपन बोलते हैं, बट वो इंडिया के लिए जरूरी भी है। जिस तरीके के बहुत जरूरी है, बहुत जिस जरूरी है। तरह की चीजें हुई है पास्ट में, उसके हिसाब से वी नीड टू हैव सच बैलेंसेस। 100%। आई थिंक अपन ने काफी अच्छा डिस्कशन कर लिया है। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यू यू ऑल्सो हैव 6-7 years ऑफ इन्वेस्टिंग हाँ जर्नी। व्हाट इज द हाँ बेस्ट stock which you remember, where you made हाँ। the handsome amount of returns, and what is the worst stock you have took और उसके बाद फिर बहुत नुकसान भी खाया होगा? ऐसा जनरली ऐसा नहीं है सबसे बस। घटिया के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो हाँ, सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करता हूँ। वी आर स्टिल होल्डिंग इट, नॉट बुक द लॉस येट। वाज इन कैमलिन फाइन साइंसेस। ओके। सो वी टुक अ हेवी हिट ओवर देयर। सो क्या हो रहा था उसमें, आई टेल यू माय थीसिस। दिस हैपेंड लास्ट ईयर वेयर हम्म। वी एंटर्ड एट अराउंड 163 रुपीज, तभी ओके। का एंट्री लिया था। हम्म। एंड so basically their competitor was Clean Science. Okay, so ओके। apparently there was this anisole route of making the product which Camlin had apparently figured out, due to हम्म। which the dominance of Clean Science would go away. So we were ओके। seeing that there can be some revenue shift coming from Clean Science to तो Camlin. चलिए। वहाँ पे क्या हो रहा था कि private equity was coming and taking over a significant stake inside Camlin. So हम्म। Infinity Holdings एक private equity थी, they were coming in हम्म। and taking in quite a stake at an open offer. If I am not wrong, the price was 160 something, around that price only of the open ओके। offer. So we entered at the same valuation private equity had entered. हम्म। Then after that, the chemical cycle went bad. That's where we got stuck. हम्म। And after that, they shut down their plant in Italy also. तो वहाँ का भी revenue loss हो गया. And we've just been stuck since. So
I would say now the price is at $102. They did a rights issue also because they need funds to Hmm. continue that. Fixed cost of the plant is around 15 crores or 20 crores per quarter. So they are Hmm. bleeding money. So I've got stuck in that investment. So that basically taught me quite a bit that just because private equity is entering and taking over a company, it doesn't It doesn't mean. necessarily mean a good thing. Hmm. You have to understand the business cycle a lot better. Ki Hmm. if exports is taking heavy hit, so equities horizon can be 7 to 10 years. I don't have that horizon. Yeah. So expectations and margins should be matching. That's Yeah. very important. So we are sitting on it, looking at maybe another 1 or 2 quarters after which we might book the loss. Because I Yeah. want to see some kind of recovery possible. Because इतना अगर मैं रुक ही गया हूँ, I'd rather just see a little bit more of a green shoot in the numbers and then take the Hmm. hit rather Call. than Yes. accept the worst possible valuation. Got it. So that was a pretty bad investment for me. Hmm. So that's one. And then I would say a very good investment, like if you're looking at returns wise and in how much time, I think VA Tech Wabag did very well for me. I had invested in Water VA Tech theme. Wabag last year. Yeah, water theme I was very bullish on. Last year Hmm. we had recommended it at 450 rupees. Now Hmm. it's at 1600. It had gone till 1600. 1800 also a few years back. Yeah. So I feel that water theme. I was just reading an article the other day that two-thirds of Europe's water is going bad. So the opportunity for desalination is huge. मतलब Huge. exports का huge scope है तो I think water can be a very very good theme. So that was a very quick return for me. Gufic Biosciences has done well. Quite a Hmm. nice moated pharmaceutical company. Then if I talk about my father, for him his best investment has been InfoEdge. He had Oh, invested after the financial crisis in 2009, I think. oh, Deep discount पे at मिल that time. at, at that time, yeah, 130 rupees पे मिल रहा था. He was a Oh. strong believer in the digital story, and they Hmm. had Naukri.com and excess cash flows would be invested into startups. Zomato, Hmm. Policy Bazaar, startups they invested in back That's in good. 2010. तो उनका Hmm. फ्रूट आज दिख रहा है तो वो 130 रुपीज का 8000 रुपीज हो गया तो वी आर स्टिल Hmm. होल्डिंग in chunk. We did some profit booking also, Hmm. but for I would say like holding on and seeing that the promoter scaling it to new levels is a very nice feeling. Yes. That journey from micro cap, small cap, mid cap, large cap. It's amazing. The funny part is Zomato's market cap is now more than 2x of InfoEdge's. Yes. The startup that they invested in, uska market cap 2x Market से cap ज्यादा हो बढ़ गया. गया. It's very interesting. So that's been good. Nice. Another mistake I made was specialty restaurants. So that's when I told my team कि अभी से आपको brick and mortar नहीं देखना है. You have to look for asset light models where the scale up is very fast. Because Yes. ये brick and mortar में they are cheap for a reason. Growth नहीं आ रही है उसके लिए सस्ता है. Like Hmm. it's optically looking cheap. So that was another mistake I had made. So these two investments were not very good decisions on my part. But otherwise, quite a few successful stories. We picked Amber Enterprises, VA Tech Wabag, Gufic, I really liked Gravita, it. Ion. Those Yeah. did very well for. Hmm. So it obviously Kotak can't be at good all 450 the. is very good price, I think. 450, मतलब when I started reading about water theme is like when it was at around 800. So मैंने कहा भाई अब तो Hmm. फिर वो मार्जिन ऑफ क्योंकि सेफ्टी तभी क्या हो रहा था they were in Vietech Wabag, they had these receivables which were to be written off from the power gencos in Andhra Pradesh. So हम्म due to that, you were getting it at a cheap valuation. और तभी वो रशिया का भी पूरा हुआ था ना. हाँ If you remember the war, and they had हम्म quite a few contracts. Russia, so अच्छा people रशिया were scared में कि payment. हम्म So due to that, he was getting it at a discount. तो तभी I went heavy कि I was like अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? yeah Water theme, it's bound to stay. So Ion Exchange was another water theme stock that also did well for us. got it. Yeah. Nice, yeah. Interesting case study. Yes. So last but not the least, अभी क्या हुआ है ना कि there is too much after traffic soul और there are a lot of things which is going on in India, जिसके कारण क्या हो रहा है कि SME is looked at कि यार भाई SME में मत करो, इसमें फंस जाओगे, सेबी बहुत सारा डंडा कर रही है तो कहीं ना कहीं इसमें देयर इज टू मच नेगेटिविटी इन द SME और माइक्रो कैप स्पेस कि भाई स्मॉल कैप का तो साइकिल आता है, तुमने तो 3-4 साल देख लिया, अब नहीं चलेगा. सो हाँ. बट माई पॉइंट इज कि इफ यू आर बेटिंग ऑन द राइट थिंग, यू आर बेटिंग ऑन द राइट प्रमोटर्स, यू आर बेटिंग ऑन द राइट थीम्स, सो यू मतलब अगर यार थीम में पूरा पैसा बन रहा है तो मतलब फिर ऐसा नहीं हो सकता है.
बट योर ग्रोथ कैन बी स्लोअर, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि यार सारी मतलब स्मॉल कैप पूरा ही धड़ल्ले से गिरेगा। तो दिस माई थीसिस, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? See, again, as you rightly said, like narratives are one thing, numbers are another. आपको numbers पे focus करना है, जो actually हो रहा है उस पे ही सब dependent है कि projections क्या हो रहे हैं. हम्म। And as you rightly said कि sometimes there are many unforeseen extenuating circumstances. समझ में नहीं आता है कि कोई black swan event हो गया. So हम्म। that's why I would say कि I've been investing more in India centric businesses. Exports में क्या होता है, if your business is very skewed towards exports, आपका forex risk रहता है. There's like some war risk can affect your supply chain मैक्रो very badly. मैक्रो I एनवायरमेंट। prefer, yeah, I've been preferring to invest more in India based companies. So yeah, just keep tracking and hope for the best. Like, see, by the end of it, no one knows what's going to happen for sure. Like, हम्म। you're trying to take a calculated bet on something where you've done your research, and then just believe in the research you've done. You need to give यस। it time to play out. अभी आप कोई भी business में कोई change लाना चाहते हो, when will you see the impact of that change? It can take you 6 to 9 months. So overnight, you're not going to see that change. You have to give it some time. Like या capacity expansion लगी गई है, एक क्वार्टर जाएगा stabilize करने में, validation, all of that. फिर टाइम आपका लगता है। ramp up आ सकता है, तभी हम्म। आपका actual output आएगा. So I would say you need to give businesses that gestation period. There can be a few blips. Like as long as there's not something pathetic happening where there's a corporate governance mishap, where हम्म। the strategy or vision of the promoter has completely changed, those become signs that yeah, let's get out of this business. Ki now the focus of the company has changed. Like they're doing some unrelated diversification यस। or कुछ ऐसे acquisition कर दिया where you're saying that the ROC on this capital allocation is not looking good. Like तभी आपको एक decision लेना पड़ता है कि should we get out of this business or not. या So I या would say, yeah, it's all stock specific. Just, you have to have that belief in your research. जब भी आपने in-depth conviction के साथ bet लिया है, the chances of you going wrong if you've not bought at a pathetic valuation are very, very low. वेरी नो। Yes, agree, Yeah. agree, and even we also follow the same path because I feel corporate governance is the first criteria. अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर भले कोई भी वैल्यूएशन हो, कोई भी थीम हो, कुछ भी हो, we get out of there. See, that's what you have to, pay close attention to the indicators. जब भी Yes. indicators glaringly आ रहे हैं ना, आपका तभी bias नहीं रहना चाहिए. Like, एक्सेप्ट this इट, thing एक्सेप्ट called इट, अगर गलती भी confirmation. हो गई एक्सेप्ट इट। निकल जाना चाहिए. Booking the loss is much better. Like यस। I'm saying you should book the loss, but I myself have got stuck in this gambling. I'm not able to book the but loss. but Like there is I'm not a waiting for some there, recovery to come. yeah, yeah, but there is no it's not because of the management, it's because of the macro Yeah, it's not environment. bad. सो मेरे को Correct. मेरे को चैलेंज क्या लगता है कि अगर मैनेजमेंट खराब है ना, तो फिर वाली कंपनी कितना भी अच्छा हो उसका कोई मतलब नहीं है। Correct. That, अगर so मैनेजमेंट सही I है। remember I had booked the loss. We had taken a bet in Paytm once. We booked the loss when we saw so many management issues. Like हमने 10% लॉस लेके बुक कर दिया because no point in waiting. या या Because क्या है, regulatory hassles which are there no can be very very long to sort out. Court cases, litigation, बहुत टाइम चले जाता है. Like एक हम्म। कंपनी थी किरी इंडस्ट्रीज ऑल्सो. अभी भी उनको चल रहा है, केस अभी तक चल तो रहा है उसका। अभी भी उनका वो केस चल ही रहा है. तो ये 3 साल से मैं सुन रहा हूँ कि कुछ 800 मिलियन, इट्स मच मोर देन द मार्केट कैप ऑल्सो. वो पैसा आता है लेकिन कब आएगा, कितने अपील्स होंगे, वेरी टफ टू पता प्रिडिक्ट. नहीं। तो दिस pathetic thing happened to us in 63 moons also. Uh, you've heard of 63 या moons? हाँ हाँ, एनएससी Yeah. वाला केस। तो उस पे भी NSCL का पूरा केस था. एंड वहां पे भी द लीगल कॉस्ट वाज वेरी हाई. सो वी हैड टेकन अ बेट देयर, वी सैट फॉर 2 years, कुछ नहीं हुआ. एंड द मोमेंट वी सोल्ड तभी जाके कुछ आया. तो ऐसे ही होता है कि यू सेल ऑफ एंड देन सडनली द गुड न्यूज कम्स इन. किरी में भी अगर तू तो देखेगा ना, तो रिसेंटली प्रमोटर ने फंड रेज किया है। प्रमोटर का स्टेक उसमें अभी आई थिंक वारंट्स लिए हैं, तो उसका स्टेक पोस्ट पोस्ट अलॉटमेंट विल बी हायर देन 50%। तो उसमें भी चीजें डेवलप हो रही है। आई डोंट नो, मतलब मैंने ज्यादा ट्रैक नहीं किया बट जितना मुझे पता है। that's why like I've start like first the core business is the most important. Like core यस। business में growth आ रही है वो देखो, वहां because all नीचे these other opportunities कब आएंगे, कैसे आएंगे, पता can नहीं, be किसी को पता नहीं। can't predict easily. मुश्किल रहता है predict करने. और रेगुलेटरी वाले में तो तो भाई करना भी नहीं चाहिए मुझे। अब जैसे लाइक अब मनप्पुरम में इट इज अवेलेबल एट चीप वैल्यूएशन, बट अगर ऐसी कोई कंपनी है जैसे लाइक आशीर्वाद, अगर आज सेपरेटली लिस्ट होती,
और अगर उसमें केस हो जाता, जैसे आईएफएल में हुआ है ना, 6 महीने से वहीं का वहीं है फिर, क्योंकि वो जब तक अब वो सब सॉर्ट नहीं होगा, अब वो रेगुलेटरी इशू है, जैसे पेटीएम में हुआ था। पेटीएम में भी अब जब आपके बार बार अगर आप प्रॉब्लम में आ रहे हो, और रेगुलेटर के आपके नजर में हो, तो फिर कुछ हो नहीं सकता है until unless you cleaned up everything, you cleaned the mess, and then you are restarted। तो आई थिंक मेरे को भी वही दैट्स ट्रू। लगता है कि यार भाई, आपको फिर ऐसी चीजों पर बेट बिकॉज सी, एक्सेप्ट अगर द आपको कोई भी फॉल्ट। चीज बहुत चीप लग रही है ना, तो बहुत डीपली एनालाइज करना चाहिए कि हमारा क्या इतना अच्छा काम कर दिया कि हमको ही इतना सस्ता मिल हमको रहा एक है। सस्ता मिल मार्केट्स रहा आर नॉट स्टूपिड, मार्केट्स आर मच स्मार्टर। दैट्स व्हाई यू नोटिस 99% ऑफ द टाइम्स एवरीथिंग इज प्राइस टू परफेक्शन। है। यस। बहुत कम टाइम ऐसे मिलेगा कि आपको क्लियर वैल्यू मिल रहा है। तो देन यू हैव टू डीपली एनालाइज दैट व्हाई एम आई गेटिंग इट सो चीप, देयर इज ऑलवेज सम कैच, कि यस। वो आपको फिर पकड़ना पड़ता है। तो योर मेन टारगेट शुड बी दैट you're बाइंग एट रीजनेबली वैल्यूड एंड सेलिंग एट ओवर वैल्यूड। या। आपको बाइंग चीप ओनली इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस मिलेगा, कोई वॉर हो गया। हम्म। अदरवाइज इतना अच्छा नसीब तो नहीं हो सकता, नहीं तो सबका अच्छा हो। अगर है तो फिर आपको रीचेक करना है एक बार कि कंपनी में कुछ ऐसा तो नहीं है जो अपन मिस कर दिया है, अपन हाँ, ने मिस कर दिया। बहुत बार ऐसे होता है कि समटाइम्स यू सीइंग थिंग्स लाइक, फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर सन टीवी व्हेन आई वाज अ नूब इन्वेस्टर दैट टाइम। हम्म। मैं तभी देखता था पूरा कि अरे इतना कुछ है, डिविडेंड यील्ड इतना है, कैश इतना है बुक्स पे, हाउ इज इट सो चीप। देन यू डिग डीप इनटू द स्टोरी दैट ओ हु इज द प्रमोटर, क्या हो रहा है, क्या है, कैसा है। फिर समझ में तब आता है दैट्स व्हाई इट्स चीप। मैक्रो एनवायरनमेंट इज तो आल्सो यू हैव वेरी टू वेरी ऑलवेज, इंपॉर्टेंट। पॉलिटिक्स हाँ। पॉलिटिक्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज लाइक वो स्टॉक मार्केट आपको सब कुछ सिखा देता है। मेरा पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट वो धीरे 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 वो अरे अभी इंटरेस्ट हो गया ना मेरा देख के। डॉट्स कनेक्ट करते करते हाँ, करते आप पहुंच जाते हो कि अच्छा, ये चीप इसलिए ही चीप है। तो 100%। अच्छा, यू हैव टू ऑलवेज डू दैट रिवर्स कैलकुलेशन कि हमारा इतना अच्छा नसीब नहीं हो सकता। फॉर श्योर। Yeah, nice interaction. Thank you so much, Nitya. I will put all the links. ग्रेट I'll स्पीकिंग। ask you for the links. I'll put all the links of your website and फॉर your श्योर। social media in the description box. Thank you so much for your time. Nice meeting you. थैंक यू। यस, टेक केयर।